ओके, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? Finally, the most awaited. I know you have all been requesting me to put in the amendments lecture, so here I am actually starting with it. So just a minute, I'll just open up a few files and then we'll get started. So I hope आपको जो लेक्चर के लिंक में ही आपको ये मिल गया है, नोट्स आर मेड अवेलेबल, राइट? So yes, a very good evening to all of you. Let's get started, guys. So here I'll just open a new book. One second. Yes, so very good evening. Yes, come on. So join in quickly, guys. I know टैक्स का आज मैं अमेंडमेंट लेक्चर लेने वाली हूँ. आपको नोटबुक भी मैंने दे दी है, राइट? यस. सो गिव मी अ मिनट. अ वेरी गुड इवनिंग. यस, ईशा शर्मा जी, गजेंद्र, प्रणव, इनसाइट. यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. किसने गुड मॉर्निंग डाला रे? ओहो, आई एम गुड बलराम. आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल. थैंक यू. Yes, join in quickly, guys. Just give me a minute. I know कोविड इज तूफान हो गया यहाँ पे. कोविड ने तूफान मचा लिया यहाँ पे. तो जस्ट 2 मिनट में फाइल मेरे नोटबुक में वन नोट में कॉपी कर लेती हूँ एंड देन विल गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. Yes, so the amendments that I'm giving you are going to be chapter wise, right? So guys, जो भी मैं amendments आपको देने वाली हूँ ये chapter wise होंगे. So what will happen is thank you so much, guys. Yes, this lecture will be available later on. Very much it will be available, guys. So you don't have to worry about it. Lecture बिल्कुल available होगा. So amendments का lecture मैं नाम देती हूँ इसको. ओके. अरे यार, just 2 minutes, just wait, hold on. Actually ना 2 दिन से my system is having some problem. That was the reason that I couldn't take the lecture. So my computer was still having the problem. Just 2 minutes, wait. Hold on. Very good evening, guys. Just give me 5 minutes and we'll get started. हाँ, तो मैं आपको बोल रही हूँ, मैं जो अमेंडमेंट्स है आई एम गोइंग टू टेक इट अप लाइक चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स है. सो दिस इज द May 21 एग्जाम के हिसाब से जो भी डीटी के अमेंडमेंट्स है. यस, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. Just give me a minute. My system was having a problem like I told you, but now it's quite okay. आपने नोट्स ओपन कर लिए क्या सब लोगों ने? Thank you everyone. Okay.
How much time? I'll take 1 or 2 hours, guys. I'll just take 1 or 2 hours to complete it. Just a minute. Yes. Yes, it will be available. The video will be available in the future. So let's get started, guys. Chapter wise मैं आपको कराऊंगी. So I'll tell you what is going to be the change. Now stay focused and let's concentrate and understand. Though the amendments will be seeing that आपको लगेगा कि मैम ये 35 पेजेस के amendments है, तो let me tell you no, it's not 35. मैंने TDS का क्या किया है, पूरा का पूरा चार्ट आपको पूरा TDS का एक टेबल दे दिया है so that you have it in front of you. So actually इतने amendments नहीं, आपको डरने और घबराने की बात नहीं है. रेसिडेंशियल स्टेटस में yes there is a major amendment. टैक्स के कैलकुलेशन में कोई भी amendment मेजर नहीं है. So guys, okay Shrikant, I'm glad that you cleared both the groups. That's really nice. Yes, so guys, let's get started. And I think the sound and all is everything okay. So just give me a green signal so I'll get started with it. तो मैं चैप्टर वाइज ये जो मैंने नोट्स दिए हैं बिल्कुल ये चैप्टर वाइज है. चलो guys, are you ready? Yes, so let's understand. Just give me a green signal. Just let me know if my volume and everything is good enough for you. Yes. सो बेसिक कंसेप्ट का जो चैप्टर है, ये जो सरचार्ज के रेट्स है थोड़े से इसमें जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन में कुछ चेंजेस थे तो वैसे ही है डिविडेंड का, तो ये मैं थोड़ा लास्ट में लेती हूँ व्हेन आई कम टू द टैक्स. सो यस, ऑल इज गुड, वॉल्यूम इज क्लियर, ग्रेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, ओके. नाउ आई गो चैप्टर वाइज. अगर आपके पास सामने नोटबुक होगी तो प्लीज आप नोटबुक में लिखते जाइए मेरे साथ. सो इट ऑलवेज हेल्प स्टूडेंट्स व्हेन यू राइट इट डाउन इन द नोटबुक अलोंग विथ मी. तो हम नोट्स बनाते जाएंगे. मैं आपको बोलूंगी इस अमेंडमेंट की वजह से आपके कौन से क्वेश्चंस में और क्या चेंजेस होने वाले हैं. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ सबसे पहले आई विल कम टू चैप्टर 2. मैम चैप्टर 1 अपना इंट्रोडक्शन या बेसिक है. उस बेसिक में एक आई नो ऑप्शनल टैक्स रेट आ गया 115 बैक, लेकिन वो मैं थोड़ा एंड में लेने वाली हूँ. उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी करने वाली हूँ. मैंने 1-2 क्वेश्चंस डाले हुए हैं. एक सेकेंड, लैग 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 हो रहा है. बघा आलं का? ठीक आहे, चल. हां, yes guys, so I'm back. Let's get started now. Yes, is it fine now? Is it fine? Yes, so let's get started guys. So I'll go chapter wise. It's going to be a quick amendment along with some problems and you get a thorough understanding so that you're prepared for your May 21 attempt. Yes, you have old chart book, nothing to worry, everything is okay guys. You just need not worry about anything. ओल्ड चार्ट बुक वगैरह जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सैलरी. मैम पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, मुझे पता है, वो मैं बाद में उसके साथ जो क्वेश्चंस है थोड़े बहुत वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फोकस, आप आपकी नोटबुक क्लियर सामने रखिए और नोटबुक के साथ आप लिखते जाइए. येस श्रीकांत, येस, थैंक यू सो मच. आई हैव गॉट योर मैसेज. ओके, ग्रेट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. डू यू रिमेंबर इन सैलरी में क्या क्या है अपना? स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज रिमेन द सेम. सैलरी इज डिवाइडेड इनटू बेसिक सैलरी, बेसिक है, अलाउंसेस है, perquisites है, ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16. इज देयर एनी चेंज इन एनी ऑफ द अलाउंसेस? माय आंसर इज अ स्ट्रेट नो. सो देयर इज नो अमेंडमेंट इन एनी ऑफ द अलाउंसेस. 2 थिंग्स हैव गॉट एडेड, एडिशनल चीजें ऐड हुई है. तो एग्जिस्टिंग आप जो भी सैलरी में पढ़ रहे हो क्या हम पढ़ सकते हैं? हाँ, आपने जिस बुक से पढ़ा है, जहां से पढ़ा है, आप बिल्कुल वैसे पढ़ सकते हो. ऑफकोर्स आप जो अटेम्प्ट देने वाले हो गाइस,
it is going to be everything is going to be asked as per AY 21-22, right? So whatever attempt you're going to give, it is going to be as per AY 21-22. बिल्कुल. तो आपके लिए अभी कौन सा PY applicable होने वाला है? 2021 is the PY that is going to be applicable to you guys. Yes. Now सैलरी के चैप्टर में स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई चेंज नहीं है, जैसा 50,000 है वैसा ही 16 के डिडक्शंस में कोई चेंज नहीं है. बेसिस ऑफ चार्ज, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ये सब बिल्कुल भी सेम ही है. नाउ ESOPs, यस, सो अमेंडमेंट नंबर 1, ESOPs. अगर किसी के पास ये नोट सामने नहीं है तो आप नोटबुक में चैप्टर वाइज कहीं पे भी पेज में चैप्टर वाइज आप लिख के रखेंगे. हाँ, जैसे कुछ बच्चों का आ रहा है कि आप रिवीजन लेक्चर लीजिए, पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली रिवीजन लेक्चर लेने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Yes, now guys, ESOPs. What are ESOPs? Employee stock option plan. Employer provides to you these plans at a concessional rate. So हम यहाँ पे perquisite निकालते हैं. There is perquisite in the hands of the employees. Yes, perquisite के calculation में कोई change नहीं है. Perquisite is equal to FMV as on the date the employee exercises the option. So it is the day the employee exercises the option. उस दिन का FMV लेना है minus cost to the employee. सीधी सी बात है. परक्विजिट का मतलब गाइस होता है, बच्चा क्या होता है? परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट. यस, सो व्हाट इज द बेनिफिट? आई गॉट इट एट अ कंसेशनल रेट. आज उसकी एफएमवी अगर 100 रुपया है भाई और एम्प्लॉय ने मुझे 60 में ऑफर कर दिया, तो मुझे कितना फायदा मिला पर शेयर? परक्विजिट का मतलब होता है फायदा. मुझे कितना फायदा मिला पर शेयर? 40 विल बी ट्रीटेड एज योर परक्विजिट. सो मैम, इज देयर एनी चेंज इन दैट? नो, देयर इज नो चेंज इन दैट. बट व्हाट इज द न्यू थिंग दैट हैज बीन एडेड? परक्विजिट का बेनिफिट इज टैक्स्ड इन द ईयर इन विच द शेयर्स आर अलॉटेड टू यू. बराबर ना? आई गॉट द फायदा, मुझे शेयर्स मिल गया तो मुझे फायदा मिल ही गया. सो परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई इज टैक्स्ड. परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई इज टैक्स्ड इन द ईयर. यस, सो इट इज टैक्स्ड इन द ईयर इन विच द एम्प्लॉई को क्या मिल जाता है? ESOPs मिल जाते हैं. बिल्कुल. लेकिन हमने ये बेनिफिट थोड़ा सा स्टार्टअप, एलिजिबल स्टार्टअप. सो एक वर्ड आपको जो याद रखना पड़ेगा. यस, सो यहाँ पे जो अमेंडमेंट है गाइस, द फर्स्ट अमेंडमेंट दैट आई एम टेलिंग यू फॉर द चैप्टर ऑफ सैलरी एंड दैट इज एलिजिबल स्टार्टअप. सो एलिजिबल स्टार्टअप में क्या अमेंडमेंट आया है, प्लीज अंडरस्टैंड. एलिजिबल स्टार्टअप मतलब क्या मैम? सेक्शन 80I की जो सीरीज है, जो आपके सिलेबस में इंटर में नहीं है, वहां पे एक 80I वाली जो सीरीज है वहां पे एक डिडक्शन है एलिजिबल स्टार्टअप के लिए. सो एलिजिबल स्टार्टअप इज एनीथिंग दैट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग और डूइंग प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन इनोवेशन. सो इनोवेशन के बेस पे अगर आप करते हो, जैसे मेक इन इंडिया को हम एनकरेज करना चाहते हैं, वैसे हम स्टार्टअप्स को एनकरेज करना चाहते हैं. सो बिल्कुल. सो इसी तरीके से अगर कोई स्टार्टअप है तो गवर्नमेंट वांट्स टू गिव सर्टेन बेनिफिट्स टू देम. नाउ एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट क्या दिया है? इनकम टैक्स ने ये बेनिफिट दिया हुआ है. राइट. नाउ गाइज, यस, आई गॉट योर मैसेज. रिवीजन पॉसिबल होगा तो मैं ले लूंगी. आज मुझे अमेंडमेंट्स पे फोकस करने दीजिए. बिल्कुल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. ओके, वन थिंग लेट मी टेल यू. जिन्होंने मेरे से पेन ड्राइव लिए हुए हैं, एनीबडी हु हैज बॉट पेन ड्राइव फॉर May 21 and November 21. So anyone who has bought pen drives for May 21 and November 21, guys, you need not watch this amendment lecture. These are already covered in your lectures that you're getting. So your lectures are already amended lecture. This is basically for students who have done my November 20 और earlier आपने pen drive classes किए होंगे, तो उनके लिए है. ठीक है? Yes, मैं रिवीजन करा दूंगी. आज मुझे अमेंडमेंट्स कराने दीजिए. एलिजिबल स्टार्टअप, आई विल डू रिवीजन. ओके, यस, आई विल टेक इट अप. टैक्स ऑन परक्विजिट्स. नाउ दिस इज अ न्यू पॉइंट दैट हैज कम अप गाइस, सो प्लीज फोकस करिए. सैलरी में एग्जिस्टिंग आपने जो पढ़ा है वैसे ही पढ़ना है. 2-3 चीजें नई एड अप हुई है. नाउ एलिजिबल स्टार्टअप को बोला गया है भाई, अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप में जॉब कर रहे हो और आप वहां के एम्प्लॉइज हो, तो आपको परक्विजिट का टैक्स उसी साल में अराइज नहीं होगा. आपके लिए इस टैक्स का पोस्टपोनमेंट कर दिया है. आपके लिए इस टैक्स का क्या कर दिया गया है? पोस्टपोनमेंट कर दिया है. सो टैक्स ऑन परक्विजिट जो ESOPs का टैक्सेशन है, हाउ इट हैज बीन पोस्टपोन्ड, प्लीज अंडरस्टैंड. यस, however, where such shares or securities are allotted by current employer being an eligible startup. तो yes, so those who are writing it down simultaneously in the notebook, या किसी ने इस नोट्स के प्रिंटआउट्स निकाले होंगे तो आप सर्कल कर लीजिए एलिजिबल स्टार्टअप. यस, तो एलिजिबल स्टार्टअप के लिए ये कब टैक्सेबल होगा? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स. 48 मंथ्स माने कितने?
4 साल, यस। सो 12 मंथ्स के हिसाब से 48 मंथ्स माने 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट ईयर। तो 4 साल तक हम आपके लिए रुकेंगे। तुरंत उसी साल में ईसॉप मिल गए। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ईसॉप्स मिल जाते हैं मुझे, लेकिन पैसे नहीं है ना मेरे पास टैक्स भरने के। मैंने ना तो ईसॉप्स बेचे ना कुछ किए, मैंने सिर्फ ईसॉप्स ले लिए भाई, ले लिए और आप टैक्स लगाते हो। बट क्या ये पोस्टपोनमेंट ऑफ टैक्स सबके लिए हुआ है? ना, दिस पोस्टपोनमेंट ऑफ टैक्स हैज हैपेंड ओनली फॉर एलिजिबल स्टार्टअप। आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन समथिंग लाइक yes, so I expect a question on this like an MCQ type of a question. Amendments में मेरे अटेम्प्ट पे तो questions आते ही है, तो मुझे ऐसा है कि आपको ये जो questions है ये आपको MCQ फॉर्म का ये क्वेश्चन आ सकता है। सो एलिजिबल स्टार्टअप के लिए ये है, पोस्टपोनमेंट किया है परक्विजिट्स के लिए। कब टैक्स होगा मैम? 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट AY, बरोबर। उसके बाद in the year in which the security or the shares are being sold, so आपने वो shares बेच डाले 4 साल के पहले, या assessee ceases to be the employee whichever is earlier। तो तीनों में से whatever event will happen earlier, या completion of 4 years from the end of the relevant AY जब आपको perquisites दिए गए वो, या जब आप ये shares बेचते हो, या you cease to be the employee of the company। एंड इन तीनों में से जो भी पहले होगा उस साल में perquisites का taxability किया जाएगा। ये किसके लिए किया गया है? यस, ये किसके लिए किया गया है? दिस इज ऑल डन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप। सो गाइज ये किसके लिए किया गया है? दिस इज फॉर एलिजिबल स्टार्टअप। ओके, यस। नाउ ये पहला अमेंडमेंट हुआ सैलरी के चैप्टर में। अगेन आई टोल्ड यू सैलरी में नो चेंज इन स्टैंडर्ड डिडक्शन, नो चेंज इन एनी अलाउंसेस। ईसॉप्स में जनरली जब आपको ईसॉप्स मिलते हैं उसी ईयर में टैक्सेबिलिटी हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए क्या हो जाता है? द टैक्सेबिलिटी हैज बीन पोस्टपोन्ड। सुपर। अमेंडमेंट नंबर 2, मे अटेम्प्ट वाले बच्चों को इस अमेंडमेंट पे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन या रूल अभी मार्च 21 में आया। तो मार्च 21 के तो नोटिफिकेशंस और रूल्स आपके सिलेबस को एप्लीकेबल है ही नहीं। यस, तो ये तो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है ही नहीं। सी पॉइंट फिर से बता दूं, सी पॉइंट इज व्हेन यू सीज, मतलब यू स्टॉप टू बी द एम्प्लॉई ऑफ द एम्प्लॉयर, यू आर नो मोर द एम्प्लॉई, आपने आप जॉब छोड़ दिया है। सो अगेन किसी ने बोला ये रिपीट करो, इसलिए मैंने रिपीट किया। ABC 4 साल खत्म होने पे, मेरे साथ आप रिपीट करते जाइए, 4 साल खत्म होने पे, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज, और यू सीज टू बी द एम्प्लॉय माने यू स्टॉप टू बी द एम्प्लॉई। यस, so whichever is earlier. Yes, these amendments will be applicable for May 21 as well as November 21. Correct. आगे let us go ahead and focus now. Adjustment number 2, amount of aggregate amount of contributions. Now please focus करिए, इसका मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगी ऐसा क्यों किया है। हाँ, बट इससे ज्यादा आपको ज्यादा इस पॉइंट पे प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड मत करना, यू वोंट गेट प्रॉब्लम्स ऑन दिस काइंड ऑफ एन अमेंडमेंट। अमाउंट और द एग्रीगेट अमाउंट्स और एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू द असेसी बाय एन एम्प्लॉयर। नाउ लिसन, डू यू नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, NPS होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, याद आ रहा है ना? आई एम श्योर यू गाइज हैव बीन स्टडिंग. So let us understand what is happening over here is amount or aggregate amounts of any contribution made to the assessee by the employer. The employer is making a contribution in a recognized, employer is making a contribution in रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मैम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जाम्प्ट अप टू 12%. मैम इसमें कुछ चेंज है क्या? नहीं नहीं, घबराना मत, डरना मत, इसमें कोई भी चेंज नहीं है. सो देयर इज नो चेंज इन दिस. एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू RPF. आई नो इट इज एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, उसमें कोई चेंज नहीं है गाइज. उसके बाद एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ये RPF हो गया. देन एम्प्लॉयर कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है? NPS में कंट्रीब्यूट कर रहा है. उसके बाद कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है? अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड. इनको इंडिविजुअली कोई ना कोई बेनिफिट दिया गया है, लेकिन एक अपर कैप ऐड कर दिया है, एक अपर लिमिट ऐड कर दिया है इस बेनिफिट का. गाइज आई टेल यू व्हाई. नाउ इफ यू जस्ट रिकॉल, फर्स्ट लेट्स गेट सम लॉजिक क्लियर. स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर 12% एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री? मुझे बताना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री कितना एग्जाम्प्ट होता है बच्चा? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री इज एग्जाम्प्ट अप टू 12% of salary. So guys, let's take an example where you know my salary is like 50 lakhs. Yes, I am teaching you amendments of salary right now. This is an amendment ka lecture, right? Yes, so employers contribution is exempt up to, yes, employers contribution guys is exempt up to 12% of salary. So it is exempt up to
12% ऑफ सैलरी. नाउ यू नो देन गवर्नमेंट इज नाउ थिंकिंग अरे हम कितने बेनिफिट्स दे रहे हैं, कितना बेनिफिट दे रहे हैं, कहाँ से टैक्स करें, कहाँ से हम लोग टैक्स ये करें. तो हमें ये समझना है कि अगर किसी की सैलरी स्टूडेंट्स जस्ट मान लो गाइज, और होता है ऐसे आजकल सैलरीज बहुत हाई होती है. सो लेट अस अंडरस्टैंड अगर किसी की सैलरी 80 lakhs है, ओके, सो इफ समबडी सैलरी इज अराउंड 80 lakhs, चलो मुझे बताना किसी की सैलरी अगर 80 lakhs है, हाँ, तो उसका 12% गाइज, व्हाट विल बी 12% ऑफ 80 lakhs? 9,60,000, बरोबर. यस, सो कितना होगा? 9,60,000, बिल्कुल. 12% ऑफ सैलरी 9,60,000, राइट. ऐसे और भी बेनिफिट्स है. सुपर एन्यूएशन का बेनिफिट है. सुपर एन्यूएशन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स, एग्जिस्टिंग प्रोविजन पहले समझ के लो. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी. गवर्नमेंट ने कितना एग्जाम्पशन दिया? चल तुझे 9,60,000 का एग्जाम्पशन दे दिया, अयो बहुत ज्यादा एग्जाम्पशन दे दिया. फिर सुपर एन्यूएशन फंड है. सुपर एन्यूएशन फंड में भी तुमने कंट्रीब्यूट कर लिया 1.5 लाख, बरोबर. और ऐसे ही है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस. यस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम भी है. इट इज एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ सैलरी. आपको डिडक्शन मिलता है. तो गाइज आपका जो भी बेनिफिट है यहाँ पे कितना है? 10% ऑफ सैलरी मिलता है यहाँ पे, बरोबर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट सोच रही है यार ये टोटल बेनिफिट तो बहुत दे दिए, एक 960, 1.5 लाख, 10-12 लाख का तो बेनिफिट हम हर पर्सन को दे रहे हैं. नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है. ना 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 ना, नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, इस पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा देते. वो प्लीज आप फोकस करिए. बिल्कुल May 21 में इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है. अमेंडमेंट्स बहुत मैनेजेबल है, आप बिल्कुल मैनेज कर पाओगे. नोटबुक में साइड बाय साइड लिखना है और बाद में आपको नोट्स में जाके चेक करना है कि कहाँ क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है. तो इनकम टैक्स ने अभी गवर्नमेंट ने बोला नहीं चलेगा बाबा, हमने कितना एग्जाम्पशन देंगे? 7.5 लाख तक ही एग्जाम्प्ट होगा. उसके ऊपर एम्प्लॉयर अगर इन तीनों फंड्स में कंट्रीब्यूट करेगा. कौन से 3 फंड सिलेक्ट किए गए? मेरे साथ रिपीट करना. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, सुपर एन्यूएशन फंड एंड उसके बाद क्या है? सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, सुपर एन्यूएशन फंड एंड एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम. इससे जो भी आपको बेनिफिट मिलता है अप टू 7,50,000 इट इज ओके. अबाउ 7,50,000 हम अलग से एक परक्विजिट करके ऐड करेंगे. यस, तो परक्विजिट में 2 नए परक्विजिट्स ऐड हुए हैं. पहली कैटेगरी में, डू यू नो आई डिवाइड परक्विजिट्स इनटू 3 कैटेगरीज. परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, यस, एंड परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, एंड देन वी हैव परक्विजिट्स exempt फ्रॉम टैक्स. Now this is a perquisite taxable in the hands of all employees. तो वहां पे हमने 14 सीखे थे, 15 और 16 में आज ऐड करा के दे रही हूं. So 2 perquisites have got added. So जो आप सीखते आ रहे हो मैम उसमें कोई चेंज है क्या? नहीं. ESOPs के perquisites में सिर्फ इतना चेंज है कि उसका taxability has been postponed for only employees of eligible startup, only for employees of eligible startup and for nobody else. Yes. नाउ ये परक्विजिट ये है कि हम गवर्नमेंट बैठ के सोच रही है यार कितना बेनिफिट, कहाँ से टैक्स कलेक्ट करें, बहुत खर्चे हो रहे हैं, कोविड का खर्चा हो रहा है, कहाँ से हम टैक्स कलेक्ट करें. यस, कहाँ से टैक्स कलेक्ट करें, लेट अस अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला चलो बेनिफिट्स, यू नो स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने बोला सैलरी 80 लाख है. देयर आर पीपल हु अर्न देयर सैलरी के पैकेजेस करोड़ ऑफ रुपीज में होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ की सैलरी है. तो जस्ट इमेजिन 12-12 लाख 15-15 लाख का आपको एग्जम्पशन मिलता है 12% ऑफ सैलरी. सो गवर्नमेंट हैज पुट अपर कैप. सो गवर्नमेंट हैज पुट एन अपर कैप. गाइस ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मैम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दो. तो अभी रूल जो आया है इसके कैलकुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि हम क्लैरिफिकेशन देंगे कि ये कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली आप कैसे कैलकुलेट करोगे और हम रूल्स बनाएंगे. We were waiting for the rules. रूल्स कभी अभी जस्ट रिसेंटली 3 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा कि जस्ट रूल्स अभी नोटिफाई हुए हैं. तो लगभग ये रूल्स नोटिफाई हुए हैं अभी अप्रैल में. यस, आई थिंक इन लास्ट वीक ऑफ मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक में नोटिफाई हुआ. तो ये रूल्स इसलिए May 21 के अटेम्प्ट के लिए बच्चों को इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस रेयर है, बिकॉज द रूल्स हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन वाज ओनली नॉट नोटिफाइड. बट theoretically yes, you must know it's a very important amendment. Yes, you must know it's a very important amendment. Now let us understand the amount. Now please understand
किस किस चीज का कंट्रीब्यूशन है, मेरे साथ सबने लर्न करना है। आरपीएफ, सो यू कैन राइट हियर आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस एंड अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। हाँ, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड का ऑलरेडी 1.5 लाख का एग्जाम्पशन है मैम, उसमें कुछ चेंज है क्या? नहीं, जैसा है वैसा ही है। अपर लिमिट हम देखेंगे, टोटल बेनिफिट देखेंगे 7.5 लाख के ऊपर होगा तो हम फिर से उसको परक्विजिट करके ऐड कर देंगे। मैम इसका एग्जैक्ट वर्किंग कैसे होगा? प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है वर्किंग करने के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला हम बाद में रूल से नोटिफाई करेंगे, हम बाद में रूल से नोटिफाई करेंगे। सो 1 कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, 2 एनपीएस एंड 3 अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। So by the employer, ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर। yes, to the extent it exceeds 7,50,000, उसके आगे आपको लिखना है it will be added as perquisite. yes, it will be added as perquisite guys, above 7,50,000। बरोबर। चलो, सो कौन सी 3 चीजों का? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपरएन्युएशन फंड का टोटल कंट्रीब्यूशन व्हाटएवर अमाउंट एक्सीड 7,50,000, इट विल बी एडेड एज योर इनकम एज अ परक्विजिट। ओके, जितना भी अमाउंट आपकी परक्विजिट में ऐड होगा उसका करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट, अगर आरपीएफ में है तो आपने आरपीएफ के 2 लाख ऐड कर दी परक्विजिट में, तो 2 लाख का करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट भी आपका परक्विजिट होगा। ये बताता है अगला पॉइंट। आई नो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को ये कैलकुलेशंस करते वक्त शायद तभी ध्यान में नहीं आया कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है प्रैक्टिकली वर्किंग करने में, इसलिए गवर्नमेंट ने भी शायद रूल बनाने में इतना टाइम लगा दिया। लास्ट फाइनेंस एक्ट है बट उसके रूल्स अभी नोटिफाई हुए, इसलिए वो जो रूल्स है May 21 अटेम्प्ट के लिए 6 मंथ्स के पहले तक ही रूल्स आपको एप्लीकेबल होते हैं। तो ना तो आपके मॉड्यूल में ना आपके किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बट यस इट्स अ थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच यू मस्ट नो। यस, एग्रीगेट बेटा, एग्रीगेट इट्स अपर लिमिट, इट्स एन अपर लिमिट। ओके, यस, नाउ लेट्स सी, नीचे उसका लॉजिक है, पता चल जाएगा। यस, एग्रीगेट, yes, so amount or aggregates of amount, aggregate of 3 things: recognize RPF, NPS, superannuation fund, employers contribution, when they exceed 7,50,000, the extra amount will be added as a perquisite, that extra amount will be added as a perquisite. Do you get that? Okay, now let us understand. Annual accretion, हाँ, annual accretion म्हणजे काय? Annual accretion म्हणजे interest वगैरह। Guys, annual accretion म्हणजे काय? About interest and all, right? Now क्या होगा? Any interest, see, any annual accretions by way of interest हो, dividend हो, any amount हो, okay, which got added to your account, which got added to your RPF account, so which got added to your account, yes, it relates to the extent it relates to employer's contribution which is included in the total income in any previous year as computed in the above section. In other words, इस पे focus करिए. In other words, interest, dividend or any amount of similar nature which is included as income above, उसके ऊपर का corresponding interest will also be interest, dividend, anything that is annually added will also be treated as your perquisite. 7.5 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट है वो तुम्हारा perquisite, उस ऊपर वाली 7.5 लाख के ऊपर वाले उस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी तुम्हारा perquisite होगा. So ये 2 नए perquisites ऐड हो गए. ESOPs में एक मैंने सिखाया postponement only for eligible startup और बाद में perquisites में 2 लिस्ट ऐड हुई है guys. 1 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, सुपरएन्युएशन फंड एंड एनपीएस का एग्रीगेट लिया जाएगा. 7.5 लाख के ऊपर जो भी होगा विल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट. वो ऊपर वाली अमाउंट 7.5 लाख के ऊपर अगर 3 लाख है तो वो 3 लाख आपका परक्विजिट हो गया. उस 3 लाख के ऊपर का जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट होगा दैट विल ऑल्सो बी एडेड एज योर परक्विजिट गाइस. यस, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, चलो आगे बढ़ेंगे. व्हाट वाज द लॉजिक? I explained you the logic. I explained you the logic here कि लॉजिक क्या था. ये था कि चलो बाबा 12% देते हम लोग बेनिफिट, लेकिन जिसकी सैलरी ज्यादा है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है. आइयो इतना बेनिफिट नहीं देने का अपने को, तो अपने रेस्ट्रिक्ट करने का. कितने अमाउंट तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे? 7.5 लाख तक. कितना रेस्ट्रिक्ट करेंगे? 7,50,000 तक. अबाउ दैट इट विल बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट और उसके ऊपर का करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट, एक्रीशंस, डिविडेंड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ
perquisite. मैम ये कौन सी perquisite में ऐड होगा? ये ऐड होगा perquisite in the hands of all employees, whether specified or non-specified. Yes. अरे PDF is given beta, PDF file is added in the description, yes, of the lecture. It's already added, it's been circulated on my Telegram channel. सब जगह ये already हमने कल से circulate करना चालू किया है, so that you know you're prepared, you know ये notes करने के. Yes, so please understand here. ये logic important है. The Finance Act, guys, the Finance Act 2020 has fixed upper limit of 7,50,000 for deduction in respect of A, B and C employees contribute to NPS, superannuation and RPF. Any excess contribution above 7,50,000 is chargeable in the hands of employee. Consequently, any interest or dividend will also be treated as a perquisite. Yes, to the extent it relates to employer's contribution. Guys, it's difficult to do this calculation. Employer का कितना, employee का कितना, उसमें से 7.5 लाख के ऊपर का कितना, उसका corresponding interest निकालो. अयो, इसलिए शायद गवर्नमेंट को वो रूल लाते लाते मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में आया है, तो इसलिए वो रूल या इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स आपको शायद ही आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिए गए, वो रूल ही बाद में नोटिफाई हुआ. सो आई एम डन विद चैप्टर ऑफ सैलरी. चलो जल्दी, आपने नोटबुक में साइड में लिख लिया. सैलरी में ESOPs में पोस्टपोनमेंट for eligible startups, 2 new perquisites added where in the list of perquisites taxable in the hands of only, sorry, not only, perquisites taxable in the hands of all employees. Is that clear? बरोबर? Yes, yes, yes. Okay. चलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नो अमेंडमेंट, एब्सोल्युटली नो अमेंडमेंट. तो आपने जो भी पढ़ाई की है, हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला या मेरे रेगुलर लेक्चर का जो ये होगा मैं ऐड करके दे दूंगी उसमें. इन इनकम फ्रॉम HP दे हैव जस्ट कम विद GAV का एक ऑल्टरनेट व्यू, एक छोटा सा ऑल्टरनेट व्यू है. अगर मुझे टाइम मिला या मैं जब रिविजन लूंगी आपका, तो मैं वो डिस्कस कर लूंगी. एज सच देयर इज नो अमेंडमेंट इन द एक्ट, बट इन द मॉड्यूल में they have given for GAV, they have just given an alternate view as a note for alternate view for GAV calculation. So maybe from my regular lecture का उतना क्लिप मैं कट करके आपके साथ शेयर कर दूंगी, या जब मैं आपका रिवीजन लूंगी तब मैं आपसे ये डिस्कस कर लूंगी. सो ओवरऑल HP में आपने जो भी सीखा, स्टिक टू इट, देयर इज नो चेंज टू इट. सो आपका GAV, स्टैंडर्ड डिडक्शन, म्यूनिसिपल टैक्सेस, व्हाटएवर वी स्टडी इन LO, SO, हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, 2 लाख का लिमिट फॉर SO, 30,000 का लिमिट समटाइम्स फॉर SO, absolutely no change. Arrears of rent, unrealized rent recovered, composite rent का concept guys, co-owners का concept, there is just no change, no amendment in the chapter of HP. So now I'll come to the next chapter, and that is profits and gains of business and profession. Yes, so focus कीजिए now PGBP पे. So now we'll focus on PGBP. Yes, PGBP पे क्या सीन है now? PGBP में सबसे पहले सेक्शन 32AD, कुछ डिलीट हो गया तो मैम पहले बता दो. यस, तो पहले बता रही हूँ. 32AD इज नाउ नॉट एप्लीकेबल, सो इट्स नॉट एप्लीकेबल ओनली. दिस सेक्शन वाज ओनली अवेलेबल, दिस बेनिफिट ऑफ 32AD वाज फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन 4 स्टेट्स. कहाँ पे था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स? कहाँ पे बच्चा लोग? 4 स्टेट्स में. ये है 32AD. सो ये 32AD में अभी है ही नहीं आपको, तो आपको इसके बारे में ज्यादा लोड लेना ही नहीं है. सो 32AD इज नॉट देयर, दैट्स द फर्स्ट अमेंडमेंट. इनफैक्ट PGBP हैज बीन वेरी सिंपल फॉर यू. एक ही मेजर अमेंडमेंट इन PGBP इज दैट द टैक्स ऑडिट, वो मैं बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करने वाली हूँ. हाँ, अमेंडमेंट नंबर 2, इसके ऊपर मॉड्यूल ने बहुत फोकस किया है, और जो नए मॉड्यूल्स है इसके ऊपर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी स्पेंड किया. सो आई हैव ऑल्सो स्पेंड टाइम एंड गिवन यू अ स्मॉल एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ कराने वाली हूँ. गाइज, आई एम डूइंग इट चैप्टर वाइज. सो सैलरी में आपके लगभग कोई भी कैलकुलेशन में चेंज नहीं होगा. मैम वो एक नया टैक्स रेट आ गया है 115 बैक ऑप्शनल रेट. यस, वो मॉड्यूल में भी कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम माने कंबाइंड प्रॉब्लम्स में, तो वो लास्ट में है. मैं भी वो लास्ट में अभी कवर करूंगी, आपको बोलूंगी एग्जाम में वो कब आपको देना है, कब नहीं अप्लाई करना है. सो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड मैंने ये लेक्चर को ड्राफ्ट किया है, बिकॉज आई नो इट इज फॉर May 21 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स. सो प्लीज आप बिल्कुल आपका फोकस बनाए रखिए. एडिशनल डेप्रिसिएशन गाइज, दिस इज अवेलेबल फॉर असेसीज. एक जैसे रिकैप देती हूँ. एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? असेसीज हु आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग or into generation of electricity. So manufacturing of anything or into generation of electricity on whatever eligible plant and machinery. So of course it is available only on eligible plant and machinery. You do not get additional depreciation. It is not available on, क्या हुआ यहाँ पे चैट पे क्या हुआ?
हाँ, तो focus. It is not available on buildings, it is not available on furniture, guys. It is available only on plant and machinery, that too eligible plant and machinery. Yes, so what is the rate of additional depreciation? 20%. अगर आपने last time पढ़ा होगा तो यहाँ पे it was 35% for 4 states. Yes, guys, the rate was 35% in 4 states के लिए the rate of additional depreciation. 4 states में जो आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल में notified backwards area of these 4 states, there the rate of additional depreciation was I'm saying 35%. Yes. So it was 35%. Now it is 20% for everybody. So I think this is very important. और मॉड्यूल ने जिस कॉन्सेप्ट पे फोकस किया वो मैं आपको कवर करने वाली हूँ, लेकिन वो मॉड्यूल वाला कॉन्सेप्ट बताने से पहले I need you to understand something. Yes, तो मॉड्यूल वाला मैं कंसेप्ट पे फोकस करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझे, तो मॉड्यूल वाला वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. नाउ एट प्रेजेंट मैम व्हाट इज द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन? 20%. अच्छा मैम, 4 स्टेट्स में 4 स्टेट्स की नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? हाँ, वहां पे भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होने वाला है 20%. 35% का बेनिफिट अभी नहीं रहा, सो इट इज स्ट्रेट अवे 25% ओनली. नाउ let us just understand, guys. Do you know this concept of additional depreciation? Then you will understand what module is trying to tell you. See, if I bought a machinery now, 31st, let's say we are talking about, guys, PY, I'm talking about PY 2021. Okay? हाँ, तो प्लीज आप फोकस करिए. हम बात कर रहे हैं PY 2021 की. PY 2021 में, okay, now PY 2021 में मैंने क्या किया? In that PY, I bought a machinery, say, let's say in March 21, okay? So I bought a eligible plant and machinery, and guys, I know it is eligible for additional depreciation. So I bought a eligible plant and machinery मैंने खरीदा जो eligible है for additional depreciation. But do you realize it is put to use for less than 180 days? Yes, and when it is put to use for less than 180 days, what is the additional depreciation that I'm going to get? Not 20%, 50%. We all know when an asset is purchased and put to use for less than 180 days, do I get full depreciation? No, I get only 50%. So additional में भी वैसा ही होता है क्या? हाँ, only half मिलता है. बिल्कुल सही. तो in PY 2021, guys, I can claim 10%. Actually the rate is 20%. अभी 35% को काट डालो, 35 को काट डालो और 35 की जगह पे हो गया 20%. ओके, 35 पहले कहाँ पे था? 4 स्टेट्स की नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ऑफ 4 स्टेट्स. नाउ PY 2021 में मिलेगा 10%, बिल्कुल, और PY 21-22 में मिलेगा रिमेनिंग 10%. तो PY 2021 में 10% और PY 21-22 में और 10%. ओके, सो आधा आप अब क्लेम करना, आधा अगले साल क्लेम करना. ठीक है? यस. अब क्या हुआ? अब ये कंसेप्ट अगर आपको समझा कि आधा आपको अभी क्लेम करना है, आधा आपको बाद में क्लेम करना है, तो आपको ये समझेगा जो मैंने टेबल आपको दिया हुआ है ना. प्लीज फोकस करिए. नाउ 4 स्टेट्स के लिए भी ये 35 है क्या? नहीं, इसको काट डालो और अभी बन गया 20%. सो दैट्स एन अमेंडमेंट, गाइस. एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट अभी माने ना, इन शॉर्ट अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझना चाहिए 4 स्टेट्स के कोई भी बेनिफिट्स नहीं बचे, क्योंकि 4 स्टेट्स में 3280 था वो डिलीट हो गया और 4 स्टेट्स का भी रेट भी हमने 35 से 20 कर दिया. बिल्कुल. नाउ आई हैव मेड दिस, खास मैंने टेबल आपको इसलिए बनाया है. See students, amendment का lecture is not only covering amendments, but it is also trying to cover what the module is focusing on. So I need to also focus with you कि module कहाँ पे और क्या focus करता है, right? So please आप सुनिए. महाराष्ट्र स्टेट में एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी, और जिनके पास ये नोट्स की प्रिंट आउट नहीं है, आपको लिखने के लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आप नोटबुक में लिखते जाइए प्लीज. स्क्रीन सामने है, क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है. ठीक है? यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. महाराष्ट्र में 10 अप्रैल 2020 को आपने खरीदा. 10 अप्रैल 2020 को खरीदा मतलब ये कौन से PY में खरीदा? यस, इट इज PY 2021. Which PY is this, guys? This is PY 2021. Yes, so I have bought this in PY 2021. Now what is happening when I bought it in PY 2021? 10th April, is it put to use for the whole year, complete year, less than 180 days है? नहीं. So यहाँ पे additional depreciation सीधा क्या रेट से आपको मिलेगा? Yes, so this is what is the rate for additional depreciation. हम कैसे लेंगे? So additional depreciation होगा 20% of cost of plant and machinery. So you can just note it down. Yes, so this first one I have done, Maharashtra.
Now, I bought this in Telangana, guys. When did I buy it? Telangana की notified backward states में, backward areas में of these 4 states. तो यहाँ पे भी क्या होगा? Let us understand. PY 2021 में. I know you are sending me some questions. Just hold on. आपकी जो भी queries है वो मैंने cover कर लिए. Yes, and ये query मेरे पहले problems हो जाने दीजिए, फिर अगर आपका doubt बचता है तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते, कोई भी गाइस प्रॉब्लम नहीं है. ओके तो PY 2021 में अब 35 नहीं मिलेगा, सो इट विल बी 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. बरोबर. चलो लिखते जा रहे हैं मेरे साथ. हाँ, आई वॉन्ट राइट डाउन मीन्स राइट डाउन. मुझे चलेगा नहीं, आपने प्लीज अच्छी तरीके से लिख के लेना चाहिए. हियर थर्ड, महाराष्ट्र में मैंने 3rd पॉइंट, महाराष्ट्र में मैंने 10 मार्च 2021 को खरीदा. ओ कौन से PY में? 2021. डू यू रियलाइज इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज? यस, इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज. सो PY 2021 में यू विल बी एलिजिबल ओनली फॉर 10% of cost of plant and machinery, and in PY 21-22 you can claim balance 10%. Yes, balance 10%. Bihar, let's say these are those 4 states, notified backward area of 4 states. फिर से ये कब खरीदा आपने? 2021. Will it be same like the 3rd point? Yes, it will be same like point 3. Yep, it will be same like point 3, guys. So PY 2021 में 10% of cost of plant and machinery, PY 21-22 में balance 10%, same. Yes, because it is put to use for less than 180 days. It is put to use for less than 180 days. राइट, आगे देखते हैं. महाराष्ट्र में अब आएगा लास्ट ईयर में खरीदा आपने. यस, तो मुझे मैम आप ये इतना तामझाम कर रहे हो, इतने एग्जांपल्स दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि आई वांट योर फोकस फॉर दिस 6 पॉइंट. यस, 6 इज द स्टार परफॉर्मर. यस, 6 इज द स्टार परफॉर्मर हमारे लिए. ठीक है, हाँ. Now, this happened, guys, in which year? Yes, so this, guys, happened in PY again 1920. हाँ, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे देंगे PY 1920 में it is put to use for less than 180. So in that year you must have taken 10% cost of plant and machinery. बरोबर? Yes. Now in PY 2021 you can claim balance, right? I can claim the balance 10% cost of plant and machinery. So I can claim balance 10% cost of plant and machinery. बरोबर? Yes. Now comes the star. मैम इतना आपने बताया, क्यों बताया? वो 6 पॉइंट के लिए बता रही हूँ. हाँ, अब तेलंगाना बोलेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. क्या बोलेगा तेलंगाना गवर्नमेंट? हाँ, यस, वो गवर्नमेंट को बोलेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. So PY 1920, I didn't know you're going to bring an amendment. So PY 1920 तेलंगाना में जो भी ये यूनिट था इन द बैकवर्ड एरियाज, उन्होंने 17.5% लिया रहेगा. अयो, कितना लिया रहेगा बच्चा? 17.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. बिल्कुल. सो क्यों मैम? क्योंकि तभी रेट क्या था? 35 था ना लास्ट ईयर. मुझे थोड़ी पता है नेक्स्ट ईयर आप कम करने वाले. तो तेलंगाना क्या बोलेगा? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. यस, आपने प्रॉमिस किया था. यस, इट इज इंक्लूडेड, गाइज. You do not have to watch this for my May 21 attempt के बच्चे, November 21 attempt के बच्चों को जो पेन ड्राइव मिली है, ये सब with examples आपके साथ covered है in the pen drive, in the Google Drive, live streaming, guys. You need not watch this, okay? हाँ. Now let us understand. सो गवर्नमेंट से ठीक है, तेलंगाना क्या बोलेगा? जो वादा किया निभाना पड़ेगा. गवर्नमेंट बोलते हाँ निभाएंगे बाबा. वी हैड प्रॉमिस्ड यू 17.5, सो बैलेंस ऑल्सो वी विल गिव यू एज पर 17.5. यस. सो डू यू रियलाइज व्हाट इज द डिफरेंस, गाइज, बिटवीन दिस 6th एग्जाम्पल एंड द डिफरेंस इन दिस
बिहार वाला 4th एग्जाम्पल। हाँ, नया इस बार खरीदा तो मैं 10 और 10 देने वाली हूँ क्योंकि अब रेट 20 हुआ। लास्ट ईयर मुझे नहीं पता था रेट 20 होने वाला है। लास्ट ईयर मैंने 17.5 के हिसाब से दिया था, तो बचा हुआ 17.5 के हिसाब से मुझे चाहिए। वादा तो निभाना पड़ेगा। यस, डू यू अंडरस्टैंड दैट? बैलेंस अभी होगा, यस, लेकिन बैलेंस अभी 17.5 के हिसाब से होगा और 10% के हिसाब से नहीं होगा। नया इस साल खरीदा तो नया रेट लगेगा, पुराने के लिए पुराना रेट लगेगा और नए के लिए नया रेट लगेगा। समझे? नए के लिए नया रेट, पुराने के लिए पुराना रेट। यस, या, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी? यस, चलो मैं जाऊं आगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट। सो पहले 32AD डिलीट हो गया, गायब हो गया। 32AD को काट डालो, आपके नोट्स में से काट डालो। यू डोंट हैव टू स्टडी 32AD। पीजीबीपी आपके लिए सिंप्लीफाई हो गया है गाइस। डेप्रिसिएशन का एडिशनल रेट 35 को काट डालो। 35 की जगह पे क्या आएगा? 20% आएगा। यस, लेकिन सिर्फ याद रखना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यस, उतना याद रखना बस। उसके बाद आगे जाएंगे अमेंडमेंट नंबर 3। अमेंडमेंट नंबर 3 ऐसा तो अमेंडमेंट एज सच नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, आपके टाइम मैंने सिखाया हुआ है। यस, कि अगर आप व्हीकल, ये डेट्स अगर आपको याद होंगी, 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020। यस, इस डेट के बीच में 23 अगस्त टू 31 मार्च 2020 लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की डेट से। यस, बिल्कुल, ये PY 1920 की है। तो मैम आपने हमको पढ़ाया था, बिल्कुल मैंने पढ़ाया था आपको ये। तो वहाँ पे नॉर्मली कार के लिए, मोटर कार के लिए नॉर्मली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15 है। 15 की जगह पे आपको मिलता 13 और उसकी जगह पे मिलेगा 45 इन केस यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ हायरिंग, रनिंग एंड हायरिंग ऑफ द मोटर कार्स। यस, देन ऑफ कोर्स बट द डेट इज वेरी स्पेशल, 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020। अच्छा, तो लास्ट ईयर मैम हमने लिया है। अयो मैम, आप क्या बता रहे हैं हमको, इसको अमेंडमेंट कैसे बोल रहे हैं आप? अरे अमेंडमेंट नहीं है, बट आपको चौकर ना करना तो मेरा काम है ना। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट आई शुड मेक यू अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यस, एंड व्हाट इज दिस गाइज? ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, इसमें अभी ऐसा है कि ये कार आपने अगर लास्ट ईयर खरीदी होगी PY 1920 में, गाइज आई मस्ट हैव बॉट दिस कार बिटवीन दी स्पेसिफिक डेट 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020 तक अगर मैंने ये गाड़ी खरीदी होगी, तो प्लीज आप ये समझ के लीजिए इस साल भी इसका एक अलग ब्लॉक बनेगा, कार 30% ब्लॉक, एंड हेंस फोर्थ फॉर एवर इसका एक 30% ब्लॉक लेके ही आपको डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है अ कार वाज परचेज्ड इन द लास्ट ईयर ऑन 23 अगस्त 2019, इट इज स्टिल इन यूज, प्लीज याद रखना वो कार 15% के ब्लॉक में नहीं जाएगा, वो कार 30% के ब्लॉक में जाएगा। अयो, समझे क्या? वो कहाँ जाएगा? 30% के ब्लॉक में जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर आपने 23 अगस्त टू 31 मार्च तक अगर गाड़ी खरीदी है तो इट इज गोइंग टू गो इन द ब्लॉक ऑफ 30%. Do you understand this? Yes. So it is very important. It is acquired and it is also put to use. Of course, it is acquired and it is put to use, but it's still in use ना. Current year also I'm using it ना. तो क्या rate of depreciation? Last year ही मैंने बोला था उसका blockage बनाने का, प्लांट एंड मशीनरी कार 30% ब्लॉक और कार का 45% ब्लॉक इफ इट इज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग एंड हायरिंग देम. ओके, यस, डन. साइंटिफिक रिसर्च, अयो सुपर डुपर इजी फॉर यू. यस, इसको तो स्टार कर दो. जिनके पास नोट्स नहीं है सामने, आप फटाफट लिखते जा रहे हो. 32AD में अमेंडमेंट हुआ, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन में अमेंडमेंट हुआ. गाइस कम ऑन, आर यू प्लीज नोटिंग इट डाउन. फिर मैंने बोला नेक्स्ट अमेंडमेंट आपका कार के ब्लॉक्स आपको याद रखने हैं, वो 2 नए ब्लॉक्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए. और अब आ रहा है स्टार परफॉर्मर, स्टार ऑफ द डे. यस, एंड द स्टार इज this. Earlier all 3 categories had different percentages of deduction. Now with effect from AY 21-22, yes, this is something super duper good for us. 100% deductions for all the categories. पहले हम लर्न करते थे मैम, हम कितना लर्न करते थे. yes, it was fun teaching this batch or recording these lectures for my pen drive students. It was research, scientific research. जब असेसी खुद से रिसर्च करता है, इधर भी आपको कितना मिलता है? 100%. yes, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100, कैपेक्स का 100. बिल्कुल सही मैम. जब हम कंट्रीब्यूशन देते हैं, यू गिव कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, इट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द बिजनेस. अब पहले होता था अच्छा कंपनी को कंट्रीब्यूशन दिया, नेशनल लेबोरेटरी को दिया, किसको 150%, किसको
किसको 125%। अयो ये सब याद ही नहीं रखना है, अभी सबके लिए डिडक्शन इज 100% ऑफ द कंट्रीब्यूशन। कितना? 100% ऑफ द कंट्रीब्यूशन सीधा अभी हो गया है। इन हाउस के लिए भी मैम कितना? 100% रेवेन्यू के लिए, कैपेक्स के लिए भी 100, कॉस्ट ऑफ लैंड इज नेवर अलाउड, यस। बट बिल्डिंग कैन बी क्लेम्ड, but can be claimed under first category? No. What can be claimed under the first category? Building you can claim 100%, building you can claim it under 100% under the first category। सब जगह 100 हो गया, isn't it simplified? So no need to remember weighted deduction का concept काट डाला, no weighted deduction, yes। So no weighted deduction। So guys, are you understanding? Are you understanding the amendments? We are going good, speed good, everything good, yes। So section 35 is the next amendment। So please आपकी लिस्ट आप कंटिन्यू रखिए। So ये पहला हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन, कार की ब्लॉक्स बता दी, फिर मैंने सेक्शन 35 बता दिया। 35 में याद रखो भाई सब कुछ 100%, अभी सब कुछ 100% ही है। So I hope you are okay with it। हाँ, वेटेड डिडक्शन खत्म हो गए, 35 में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यस। सो लाइक आई टोल्ड यू यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। हाँ, और 2 सेक्शन आपके सिलेबस से निकाल दिए, एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेबस, उनको एक्ट से बाहर मत करना, ये एक्ट में अभी भी है। 35CCC गाइज एंड 35CCD। व्हाट वाज 35CCC? एग्रीकल्चरल एक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट था, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, yes। So agri extension project is not there and national skill development। तो ये 2 sections आपके सिलेबस में excluded कर दिए इंटर में। So national skill development project, yes। So national skill, so agricultural extension project, national skill development project, yes। ये आपके सिलेबस से excluded from your syllabus, तो काट डालो। तो आपने जो भी आपकी नोटबुक में आप लिखते जा रहे हो, सो 35CCC काट डालो, 35CCD को काट डालो। डन क्या? यस। एवरीबडी ओके विद दिस? आर यू विथ मी गाइज? चलो, ज्यादा नहीं है अमेंडमेंट्स, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट्स है। टैक्स ऑडिट इज अ स्टार परफॉर्मर ऑफ PGBP, यस। तो इसलिए मैंने एक एक सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज दिया है, सो दैट आपको, मुझे पता है जिस बुक से हमने पढ़ाई की है वहीं से पढ़ना हमेशा अच्छा रहता है स्टूडेंट्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय न्यू बुक्स, लुक एट इट, देन सॉल्व द क्वेश्चंस। टैक्स में आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, बट डोंट वरी, जहां पे भी प्रॉब्लम में चेंज होगा मैं आपको बता दूंगी। आपकी कोई भी वर्किंग में, टैक्स कैलकुलेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, बिल्कुल। इट इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल, यस। लेक्चर कब तक चलेगा अंजलि? लेक्चर तब तक चलेगा जब तक हम अमेंडमेंट्स खत्म नहीं कर लेते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विल गिव यू अ टी ब्रेक इन बिटवीन एट 6:37। एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे अपन। हाँ, पहले कंटिन्यू करते, चलो 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 चलो। हाँ, ये अमेंडमेंट्स नवंबर के लिए भी है। May 21, November 21 सिलेबस इज सेम गाइज, बट November 21, May 21 में मैंने सब पढ़ा लिए। या दीज आर अमेंडमेंट्स फॉर May एंड November 21 है एप्लीकेबल फॉर November 21। नाउ सेक्शन 35AD गाइज। 35AD में एक सिंपल सा अमेंडमेंट है, छोटू सा अमेंडमेंट है, एकदम लिंबू टिम्बू सा अमेंडमेंट है। 35AD हैज नाउ बिकम ऑप्शनल, यस। सो 35AD नाउ मेड ऑप्शनल। अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो तो लिख लो 35AD इज नाउ मेड ऑप्शनल। नाउ व्हाई? यस, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब। कितनी बार बच्चे पूछ रहे हैं मैम क्या ये अमेंडमेंट हमारी May 21, November 21 के लेक्चर्स में है? हाँ, ये कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है, आपको नए अमेंडेड लेक्चर्स ही मिल रहे हैं। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम AY 21-22 35AD हैज नाउ बिकम ऑप्शनल। अर्लियर मैम ऐसा नहीं था क्या? ऑप्शनल नहीं था क्या? अरे नहीं ना, क्यों मैम ऐसा क्यों हो गया? हाँ, कुछ तो रीजन है। अर्लियर एंड इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट इफ असेसी क्लेम्स, अगर वो ITR म्हणजे ITR का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITR गाइज? ITR इज इनकम टैक्स रिटर्न, यस। So if an assessee please understand, if an assessee is if an assessee claims this 35AD in the ITR, okay,
सो अगर एसएससी ये क्लेम करेगा तभी मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है, अभी ये ऑप्शनल है। मैम ऐसा क्यों? इसका लॉजिक है क्योंकि आ गया है सेक्शन 115 बैक। यू नो बाय नाउ व्हाट इज 115 बैक गाइस, आपको पता है व्हाट इज 115 बैक? 115 बैक इज अ कंसेशनल टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। यस, so it's a concessional tax rate for whom? For individual and HUF। बिल्कुल। तो अगर आप 115 बैक इज ऑप्शनल, एक तो ये ऑप्शनल है भाई, दूसरा ये कंसेशनल है बाबा। हाँ, सो ये कंसेशनल रेट है, ये किसको एप्लीकेबल है मैम? इंडिविजुअल और HUF को। बिल्कुल, ये इंडिविजुअल और HUF के लिए कंसेशनल टैक्स रेट्स है, ये ऑप्शनल है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट बेनिफिट ऐसा ही नहीं देती है, एक हाथ से बेनिफिट लेती है, दूसरे हाथ से, दोनों हाथ से भर भर के लेती है। देते वक्त एक हाथ से देती है, लेते वक्त दोनों हाथ से ले लेती है। आपको समझेगा अभी। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला अगर आप बैक लेना चाहते हो तो 35 AD का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, 35 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब मैं बैक आगे लूंगी, बैक के ऊपर मैं प्रॉब्लम भी लूंगी। अगर मुझे लगा, मैंने नोट्स में जितने प्रॉब्लम्स लिए, मुझे लगा कि नहीं मुझे एडिशनल प्रॉब्लम आपके साथ करने चाहिए तो आज करूंगी। आई एम नॉट इन अ हरी कि आज का लेक्चर आज ही खत्म हो जाए, बट मेजर अमेंडमेंट्स आज कर लूंगी। एक हाथ कुछ बचा, जैसे TDS मैंने लगभग पूरा ही चैप्टर कवर कर लिया, देखूंगी कैसे होता है। अगर टाइम हुआ तो आज करेंगे, जो बचेगा थोड़ा पार्ट कल करेंगे, बट जो भी करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। यस, सो earlier 35 AD was compulsory, no, so what is the amendment guys? Now 35 AD has become optional। yes, 35 AD has become ऑप्शनल, बिल्कुल, बिकॉज अभी ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम जो 115 बैक, वहां पे बोला गया कि AD नहीं लेना, तब बैक में आ सकते। ओके, 35D, डू यू नो गाइज अ मेजर अमेंडमेंट? आपको पता चला है ड्यू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और टैक्स ITR के डेट्स अलग अलग हो गए। हाँ, पहले पता है हम लास्ट AY तक, बहुत इतने सालों तक ITR का जो ड्यू डेट होता था ना, ITR रिटर्न भरने का ड्यू डेट और ऑडिट का ड्यू डेट दोनों सेम होते थे। ITR रिटर्न भरने का, ऑडिट करने का, दोनों के ड्यू डेट्स एक साथ सेम होते थे। हाँ, एक ही होते थे। अभी वो चेंज कर दिया। यस, तो इसीलिए अभी समझो, अभी ऑडिट कर दिया 1 मंथ पहले। अगर ITR की ड्यू डेट, ये आगे ना अमेंडमेंट यहाँ पे कवर्ड है तो उससे रिलेटेड ही है। ये देखो यहाँ पे आप ही के अमेंडमेंट्स के नोट्स में है, ये देखना, ध्यान दिया जाए, यहाँ पे फोकस किया जाए। यहाँ पे ये आपके स्टार परफॉर्मर्स है कुछ कुछ। यस, सो प्लीज अंडरस्टैंड, ड्यू डेट फॉर रिटर्न्स गाइज इज 31 अक्टूबर फॉर टैक्स ऑडिट एंड 31 जुलाई हो गया है। यस, और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 1 महीना पहले सबमिट करना है, मतलब 30 सितंबर को। आइयो, बकवास अमेंडमेंट ये कुछ अमेंडमेंट जैसे मैं अभी क्लास में बताती हूँ, तालियां बजाने के लिए होती है, सिर्फ पार्लियामेंट में तालियां बजती है खूब, तो पार्लियामेंट में बजी तालियां कि हाँ हमने टाइम दे दिया, आपको एक्सटेंड कर दिया, पहले आप ऑडिट रिपोर्ट भरो, आराम से 1 महीने के बाद रिटर्न भरो। आइयो, कौन सा CA ऐसे करने वाला है? जब आप आर्टिकलशिप अभी जल्दी ही चालू करोगे। यस, यू ऑल हैव टू स्टडी वेरी हार्ड, गियर अप योरसेल्फ एंड क्विकली क्लियर योर एग्जाम सो दैट यू कैन स्टार्ट आर्टिकलशिप। जब आप आर्टिकलशिप चालू करोगे आपको पता चलेगा नोबडी इज गोइंग टू वेट, नोबडी इज गोइंग टू वेट फॉर फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट अलग से, रिटर्न अलग से। नो, वी डोंट डू दैट इन माय ऑफिस, आई डोंट डू दैट। आई विल फाइल द रिटर्न्स, एक बार अभी ले लिया, ऑडिट कर लिया, रिटर्न भी भर दो ना, रिटर्न में और कितना टाइम लगेगा? तो हम, आपने भले ही ये टाइम हमको बढ़ा के दे दिया, प्रैक्टिकली इस अमेंडमेंट का कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये अलग बात है, बट मैम हमारे लिए क्या है? सो 30 सितंबर एंड 31 अक्टूबर, माने जहां जहां इस एक्ट में या PGBP में बोला जाएगा कि आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है, ध्यान रहे ऑडिट रिपोर्ट का डेट हमेशा 30 सितंबर होगा और रिटर्न्स का डेट 31 अक्टूबर होगा। जिनको ऑडिट है उनके लिए ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर। पहले क्या था? 30 सितंबर। अभी 30 सितंबर से ITR का ड्यू डेट कर दिया है 31 अक्टूबर, और अक्टूबर के 1 महीने पहले ऑडिट जाएगा। जहां जहां इस एक्ट में बोला जाएगा कि आपको ऑडिट रिपोर्ट देना है भाई, तो आपके लिए ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट 30 सितंबर होगा, जैसे कि 35 AD में बोला गया है। तो बस 35 AD में वही बोला गया है, या 35D में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन तभी मिलेगा जब फर्स्ट ईयर, व्हेनेवर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर 5 years। गाइस कम ऑन, डू यू रिमेंबर 35D? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। यस,
So preliminary expenses can be written off over a period of 5 years. Now what happens? अगर आपको preliminary expenses claim करना है फर्स्ट ईयर में, आपको CA से ऑडिट करवाना पड़ेगा कि हमने सही तरीके से डिडक्शन क्लेम किया है, दैट वी हैव क्लेम द डिडक्शन एंड देन वी हैव टू गिव अ ऑडिट रिपोर्ट. सो इस ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट वही होगा जो 44AB. व्हाट इज 44AB गाइस? टैक्स ऑडिट का सेक्शन. टैक्स ऑडिट के सेक्शन में बताया गया है कि टैक्स ऑडिट का जो भी रिपोर्ट होगा वो 1 महीना, इट विल बी सबमिटेड 1 मंथ प्रायर टू, प्रायर समझ में आ रहा है क्या? मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? 1 मंथ प्रायर टू ITR डेट. यस, सो इट विल बी डन 1 मंथ प्रायर टू द ITR डेट. बिल्कुल सही. माने क्या? 30 सितंबर. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 30 सितंबर. बिल्कुल. तो जहां जहां भी आपको बोला जाएगा कि बाबा ऑडिट रिपोर्ट देना है, तो देना है मतलब 30 सितंबर को देना है. ये अमेंडमेंट है सब जगह अभी, ठीक है. यस, टैक्स ऑडिट का भी 30 सितंबर, यहाँ का भी 30 सितंबर. नाउ 35D हो गया. अब आ गया अपना स्टार परफॉर्मर. यस, 44AB. आइयो, आर यू गाइज ऑल विथ मी? रेडी फॉर 44AB? तो पहले मैं 44AB समझाती हूँ और फिर हम आगे जाएंगे. तो कैपिटल गेन्स के अमेंडमेंट सारे कवर हो जाएंगे विथ 44AB. यस, सो वंस आई डू 44AB. हाँ, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, 43CA भी है, CA इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट वो मैंने कैपिटल गेन्स के साथ ही आपका कवर कर दूंगी. यस, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, बट दैट आई विल कवर विथ this I will cover with capital gains. Yes, so I'm going to cover this with capital gains. तो सारे changes हो जाएंगे. So guys, is everybody with me? बीच बीच में मुझे आपके thumbs up वगैरह मिलते रहने दीजिए, तो मुझे भी आपके यहाँ से रिस्पॉन्स आता है, तो it feels good. Yes, now I'll first explain 44AB. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. 1 गो में इट विल गो स्ट्रेट इनटू योर हेड. तो कैसे बैठेंगे? स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट. 1 गो यू विल अंडरस्टैंड 44AB. तो इनफैक्ट कोई आपके फ्रेंड्स हो गए जिनको कंफ्यूजन है टैक्स ऑडिट में, आप उनका ये कंफ्यूजन सॉल्व कर सकते हो. यस, हाँ, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लेट मी सी, कैन आई जस्ट, माई सिस्टम इज गिविंग अ प्रॉब्लम. ओके, 35D को रिपीट करो मैम. ओके, करती हूँ बच्चा. 35D में क्या बोला है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ओके, आई जस्ट रिपीट 35D. एक स्टूडेंट ने बोला, तो इन अ मिनट आई रिपीट इट गाइज. 35D इज व्हाट? राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ होते ओवर 5 years. ईयर 1 में आपको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है. ओनली इन ईयर 1 यू हैव टू सबमिट एन ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिटर विल से हाँ, हमने 35D करेक्टली कैलकुलेट किया और हम करेक्टली क्लेम कर रहे हैं. बिल्कुल. सो ये जो ऑडिट रिपोर्ट देना है, इसका ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर है. यस, दैट्स द ओनली अमेंडमेंट. द ड्यू डेट इज 30th September. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके. Now let's understand 44AB. I will first explain you 44AB. Ready? हाँ, किसी को नोटबुक में ये शॉर्ट में लिखना होगा तो आप लिख सकते हो. प्लीज आप फोकस करिए. तो आई एम ऑन 44AB. हो GST का रिवीजन लेक्चर कब होगा? पहले GST का अमेंडमेंट लेक्चर होगा 2-3 दिनों में. उसके बाद मैं GST का अमेंडमेंट लेक्चर के बाद आई विल come to revision lectures. Yes, but I will take revision. I will take a marathon. I'll try and do that. Yes, so 44AB. हाँ, focus करिए. 44AB comes in 3 categories. Okay? इसका पहला category. Now focus करिएगा, please. I expect a question. So very important. A question could be expected on 44AB. बिल्कुल. So you can expect a question on 44AB. Now first, category 1. Let's talk about professionals. Okay, so professions के लिए let us understand ये tax audit कब आएगा? When there will be tax audit, guys. Okay, so professionals के लिए when will there be tax audit? So professionals के there will be tax audit when their gross receipts exceed Yes, so for professional, I am going to divide 44AB into 3 categories. One is professions. Professions are liable for tax audit when their turnover exceeds या gross receipts exceeds 50 lakhs, guys. Okay? Yes. दूसरी category है business. Okay? Yes. तो बच्चा लोग आपने क्या सीखा है? बिजनेस में आपने टर्नओवर का क्राइटेरिया, इसको टैक्स ऑडिट कब आएगा? Yes.
हमने टर्नओवर का क्राइटेरिया क्या सीखा? व्हेन इट एक्सीड्स 1 CR. Yes, when it exceeds 1 crore. Yes, anybody who's still not clear with this 44AB, you can just focus. बिल्कुल, तो आपने यही सीखा है. Whoever is having a doubt, please later on you can ask me your doubts. Okay, so अभी amendments के lecture पे होने दो. ग्रेट, सो प्लीज अंडरस्टैंड. यस, सो पहला कैटेगरी है प्रोफेशन का. उनको टैक्स ऑडिट कब लगता है? जब उनकी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड 50 lakhs. ओके, इज देयर एनी चेंज इन दैट? नो. सो मैम हमने जो पढ़ा वो सही है, वैसा ही रखना है? हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना. नाउ बिजनेस, बिजनेस में टैक्स ऑडिट के लिए क्या होता है? बिजनेस में टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर एक्सीड्स नाउ 1 crore. मैम ये तो हमने सीखा था, ये ऐसा ही है? हाँ ये ऐसा ही है. प्लस निर्मला सीतारामन जी ने फिर से एक अनाउंसमेंट किया जिससे खूब तालियां बजी पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला कि अब 1 करोड़ की जगह पे मैं लिमिट बढ़ा रही हूं. आई एम गिविंग द बेनिफिट टू मेनी पीपल. कोई कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट का झिकझिक नहीं, झंझट नहीं, मचमच नहीं, सीधा सिर्फ आईटीआर भरो, सीधा चुपचाप अपना आईटीआर भरो. आपको टैक्स ऑडिट के कंप्लायंस से मैं छूट दे रही हूं. कैसे? मैं 1 करोड़ से लिमिट 5 करोड़ कर रही हूं. क्या 1 करोड़ से लिमिट 5 करोड़ कर रही हूं. खूब तालियां बजी पार्लियामेंट में. और फिर उन्होंने अनाउंस किया subject to and small asterisk mark, there are 2 conditions. Yes, so there are these 2 conditions, guys. Let us understand. Here what is happening is, yes, now you have a new limit that turnover exceeds. For some people they can take the benefit of 5 crores. क्या हुआ? पार्लियामेंट में तालियां बजी, बहुत जोर जोर से तालियां बजी, लेकिन तालियों के साथ उस गूंज में लोग ये पढ़ना और सुनना भूल गए कि दिस इज सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस. मैम व्हाट आर दोस 2 कंडीशंस? आई विल टेल यू इन अ मिनट. अयो, आई विल टेल यू द 2 कंडीशंस इन अ मिनट. हाँ, 2 मिनट में आपको मैं वो कंडीशंस बताती हूँ. यस, सो द टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़. और उसके बाद क्या हुआ? 2 कंडीशंस ऐड कर दी. यस, वो 2 कंडीशंस ऐसी है कि थोड़ा सेटिस्फाई करना नामुमकिन नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल है. यस, मेनी पीपल विल नॉट गेट दैट बेनिफिट. सो 5 करोड़ तक. हाँ अच्छा, मैंने ना 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी. मैम सस्पेंस मत रखो, मुझे रखना है. आई विल टीच यू इन माय सीक्वेंस ओनली. मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी उससे 1 गो में आपको समझ में आएगा कंसेप्ट, इसीलिए ऐसे पढ़ाती हूँ. ठीक है, ट्रस्ट मी, फोकस. नाउ प्रोफेशनल्स का 50 लाख, एनी चेंज? नो चेंज. दूसरा बिजनेस, बिजनेस में टर्नओवर का क्राइटेरिया था 1 करोड़, एनी चेंज? नो चेंज. Additional criteria has been added and the additional criteria is 5 crores, guys. But with this 5 crores comes in 2 additional conditions. With this 5 crores came in additional 2 conditions आ गई. अच्छा, अगर मैं वो 2 additional conditions satisfy करती हूँ, अगर मैं ये 2 additional conditions satisfy करती हूँ, तो मेरे लिए 5 करोड़ की लिमिट. वाह 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 वाह. अप टू 5 करोड़ मुझे टैक्स ऑडिट नहीं करवाना, मुझे सिर्फ आईटीआर भरना है, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, शांति से सिर्फ इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा मैम, अगर मेरी ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई तो धप कर से तुम नीचे आ जाओगे. 5 करोड़ से डायरेक्ट 1 करोड़ की जंप, नीचे डायरेक्ट नीचे आओगे. 5 करोड़ से डायरेक्ट नीचे आ गए. अगर ये दोनों कंडीशन तुम सेटिस्फाई नहीं करोगे, देन यू विल गो बैक टू योर ओरिजिनल क्राइटेरिया विच इज 1 करोड़. यस, यू विल गो बैक टू योर ओरिजिनल क्राइटेरिया विच इज 1 करोड़. बट पता है 5 करोड़ से नीचे 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 1 करोड़ पे आते तक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा 2 करोड़ पे, और 2 करोड़ तक तुम टैक्स ऑडिट अवॉइड कर सकते हो इफ यू गो इन फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस. यस, गवर्नमेंट ने एकदम खुश आपको कर दिया. 5 करोड़ पे तुम चढ़ के तो गए, फिर तुम देखते हो 2 कंडीशन है. अयो, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो 5 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा. मैंने 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए तो मैं डायरेक्ट गिर के नीचे 1 CR पे आ जाऊंगी. 1 CR पे आने से पहले सीए बोलेगा रुक 2 CR पे एक बैकअप प्लान है. बैकअप क्या बैकअप है? गोइंग फॉर 44 AD, ट्राई प्रिजम्पटिव. अगर प्रिजम्पटिव ले लिया तो टैक्स ऑडिट से बच गए. सो 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो यू कैन स्टिल अवॉइड टैक्स ऑडिट बाय गोइंग इनटू प्रिजम्पटिव. बट 2 करोड़ का मेंशन कहीं पे भी टैक्स ऑडिट में नहीं है, उसके लिए 44 AD प्रिजम्पटिव बेसिस का अलग से सेक्शन बनाया गया है. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. अयो, दिस इज फॉर IPCC स्टूडेंट्स. नाउ ध्यान से सुनो. हाँ, तो बिजनेस में टैक्स ऑडिट
1 करोड़ या तो 5 करोड़. इफ यू डोंट सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस देन यू विल गो बैक फ्रॉम 5 CR टू गो बैक टू 1 करोड़ का लिमिट. नाउ थर्ड कैटेगरी क्या है मैम, बताओ ना 2 कंडीशन. अरे बताती हूँ ना. चलो पहले प्रोफेशंस, दूसरा बिजनेस. 1 and 2 ये टर्नओव्हर बेस्ड क्रायटेरिया. 1 and 2 ये क्या है, टर्नओव्हर बेस्ड क्रायटेरिया आहेत. सो 1 and 2 क्या है बच्चा, टर्नओव्हर बेस्ड क्रायटेरिया. अब आएगा थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी में मैम किसको टैक्स ऑडिट है, आपका टर्नओवर कुछ भी हो, आपके टर्नओवर से हम लेना देना नहीं है. 1 and 2 में आई विल लुक एट द ग्रॉस रिसीट्स, I will look at the turnover, yes, but I will not look at your gross receipts. I will not look at the turnover in the third criteria. What is the third criteria? Third criteria में बोला गया है, अरे गौतम डोंट कंफ्यूज, 10 करोड़ किया है वो इस एक्ट में किया है, हाँ 2021 का है, अगले एवाई के लिए, एवाई 22-23 तुम्हारे लिए नहीं है. आई एम टीचिंग व्हाट इज एप्लीकेबल टू यू फॉर योर एग्जाम्स फॉर May 21 एंड November 21. सो दिस इज एन अमेंडमेंट लेक्चर विच इज गोइंग ऑन फॉर May 21 एंड November 21. हाँ, नाउ अंडरस्टैंड. प्रोफेशन हो गया, बिजनेस हो गया. अब assessees who are covered under presumptive basis, ये आयो assessees who are covered under presumptive basis. Yes, so assessees जो कहाँ कवर हो गए, presumptive basis, but they do not opt for it. But do not opt for it. चलो आपके सेक्शन में, हाँ अभी ना ये मेरा काम आगे का बस सिखाने का मेरा काम नहीं है अभी, अभी के लिए. क्यों, क्योंकि ये अमेंडमेंट का लेक्चर है. फिर भी टैक्स ऑडिट है तो मैं ये वाला सेक्शन डिटेल में करवा लेती हूँ. यस यस, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. नो नीड टू से सॉरी बाबा, नो नीड टू से सॉरी, सॉरी नहीं बोलने का. ऑप्ट फॉर इट. ओके लिसन नाउ, लिसन. अयो हाँ, यू डू नॉट ऑप्ट फॉर इट. प्रिजम्पटिव बेसिस को तुम ऑप्ट नहीं करते, माने आपको प्रिजम्पटिव सेक्शंस एप्लीकेबल है बट यू आर डिक्लेयरिंग लोअर प्रॉफिट. यस, बट व्हाट आर यू डूइंग गाइस, यू आर डिक्लेयरिंग लोअर प्रॉफिट. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, लेट अस अंडरस्टैंड. देयर इज 44 AD, दैट इज 8% और इट इज 6% वाला, बरोबर. हाँ 8% और 6%, उससे आपने लोअर दिखाया, राइट. सो इफ यू शो लोअर प्रॉफिट देन क्या होगा, so lower profit plus your income exceeds BEL. What is BEL? Basic exemption limit. Yes, so your income exceeds BEL. अयो कंपल्सरी टैक्स ऑडिट, कंपल्सरी टैक्स ऑडिट. यस, कंपल्सरी टैक्स ऑडिट. देखने का नहीं तुम्हारा टर्नओवर कितना है, मैं देखने से नहीं वाली. तुम 44 AD नहीं फॉलो कर रहे ना, तुम्हारा इनकम अबव BEL है ना, 2 कंडीशन सेटिस्फाई किए ना, तो टैक्स ऑडिट लग जाएगा. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. उसके आगे 44 ADA, हाँ प्रोफेशनल्स के लिए 50%. कब लगेगा टैक्स ऑडिट, सेम. यस सेम, दोनों कंडीशन. क्या दोनों कंडीशन मैम, एक लोअर प्रॉफिट, दूसरा इनकम एक्सीड्स BEL, तब टैक्स ऑडिट लगने वाला है कंपलसरी. हम टर्नओवर नहीं देखने वाले. मैंने टर्नओवर का क्राइटेरिया मेंशन किया है क्या, तुम मत मेंशन करना. हम एक्ट सीखने आए, बनाने नहीं आए. यस, नाउ गो अहेड एंड लेट अस अंडरस्टैंड. 44 AD AE, हाँ AE मतलब वो ट्रक्स वाला. बस इधर सिर्फ लोअर प्रॉफिट का क्राइटेरिया, ओनली वन क्राइटेरिया, दैट्स इट. ओनली वन क्राइटेरिया, कंपल्सरी टैक्स ऑडिट. तो मैंने टैक्स ऑडिट को सम अप कर दिया, हियर इज योर सम अप फॉर टैक्स ऑडिट. सो टैक्स ऑडिट, प्रोफेशंस अबाउ 50 lakhs, बिजनेस अबाउ 1 crore. समटाइम्स फॉर सम assessees 5 crores का लिमिट विल अप्लाई, बट दैट कम्स विद 2 conditions. आई नीड टू सेटिस्फाई बोथ. ऑफकोर्स एक अभी काम बचा है, मुझे दोनों कंडीशंस बतानी है. सो वन दैट 5 crores का कंडीशन कम्स विद दोस 2 conditions, 5 crores का क्राइटेरिया
criteria comes with 2 conditions. If I satisfy both conditions, super duper, no problem. 5 करोड़ तक आराम करो, टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ITR भर देना। और अगर मैंने वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो 5 करोड़ से धप करके नीचे आ जाएंगे 1 करोड़ पे, ठीक है, यस। और जिन लोगों को प्रिजम्पटिव बेसिस एप्लीकेबल है उनको तो टैक्स ऑडिट करवाना ही करवाना है, उनको तो चॉइस है ही नहीं, यस। नाउ माय जॉब इज टू टीच यू दीज 2 कंडीशंस, यस। पेन बन गई यस मेरे लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे भी देख रहे हैं। हाँ हितेश, मेरी पेन टेम्पररी बन गया है, कंप्लीटली नहीं सॉल्व हुआ है बट काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, यस। अभी 2 कंडीशंस बताती हूँ, हाँ ये बताती हूँ, ये लो, यस। आपकी जो टोटल रिसीट्स है, एक सेकेंड, हाँ ये 1 और 2, yes, so I'm here at 2 conditions guys, so let us understand, yes, so I'm going to tell you टोटल कैश रिसीट्स। ना आपको क्या लेना है, आपके टोटल, यहाँ पे पता है क्या, आप असेसी को मजे करने को बोल रहे हैं, अरे तेरे को 5 करोड़ तक टैक्स ऑडिट नहीं है, आराम कर, तू आराम कर। अयो मेरे को 5 करोड़ का लिमिट एप्लीकेबल है कि 1 करोड़ का, इसके लिए आराम नहीं करना पड़ेगा, फंड फ्लो बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। इस गवर्नमेंट की टैक्स को सिंप्लीफाई करने की नीयत बहुत अच्छी है, बट द वे दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट, नो इट्स नॉट वर्किंग, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दे आर एंडिंग अप कॉम्प्लिकेटिंग द एक्ट। आई एम तो गोना चार्ज फ्रॉम दिस ईयर, यस, कि आपको ऑडिट है या ऑडिट नहीं है, ये मैं डिसाइड करने के लिए अलग फीस लेने वाली। क्यों? अरे फंड फ्लो बनाना पड़ेगा, या तुम बना के दे दो। क्यों मैम, क्यों फंड फ्लो या कैश फ्लो बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, आपकी जो भी टोटल रिसीट्स है उसका टोटल लेने का, उसका 5% लेने का। हाँ, तो आपकी कैश वाली जो रिसीट्स है इस 5% के अंदर होनी चाहिए। योर कैश रिसीट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट, और योर कैश पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स। अयो बोलना तो जरा मैम फिर से, फंड फ्लो बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? आई विल हैव टू चेक योर टोटल रिसीट्स, आई विल हैव टू चेक योर टोटल पेमेंट्स। हाँ, रिसीट्स में सेल्स भी आएगा, लोन्स भी आएंगे, रिसीट, इसलिए मैंने बोला फंड फ्लो, कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। यस, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि मुझे 5% तक ही कैश की ट्रांजैक्शन, वी आर डूइंग ऑल दिस टू एनकरेज डिजिटल पेमेंट। वी आर सेइंग नहीं ज्यादा डिजिटल पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, कैश की ट्रांजैक्शन मत करो। इस गवर्नमेंट ने तो वैसे भी डिमोनेटाइजेशन लाया है, नाउ दे वांट दैट इकोनॉमी शुड बी अ कैशलेस इकोनॉमी, वी शुड मूव टुवर्ड्स डिजिटल मनी एंड डिजिटल मोड्स। यस, सो हियर दे आर सेइंग कि आपकी जो रिसीट्स है 5% ऑफ द एग्रीगेट कैश रिसीट्स, ओके, yes, and total cash payments should not, जो भी है कैश पेमेंट should be less than 5% of all the payments including expenditure। बिल्कुल, तो वैसे ही 5% of the aggregate word कैश वहां से काट डालना जरा। तो कंक्लूजन क्या है? yes, 95% should be in white and 5% can be in cash। तो आपकी टोटल रिसीट्स लेने का, टोटल रिसीट्स का 95% चेक से होना चाहिए, अप टू 5% कैश में रहेगा तो चलेगा, अप टू 5% कैश पेमेंट्स रहेगा तो चलेगा। ये दोनों कंडीशन, बोथ द कंडीशन यू सेटिस्फाई, देन द लिमिट इज 5 करोड़। बट नाउ लेट्स से देयर इज अ पेट्रोल पंप, ओके, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का वो खुश हो जाता है, अभी नया नया स्टार्ट किया है, पेट्रोल पंप का टर्नओवर तो करोड़ों में जाता है, बहुत ज्यादा जाता है। आई हैव अ क्लाइंट जिनका मैं पेट्रोल पंप का मैं ऑडिट करती हूँ, बट ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो वो क्लाइंट बोलता है, खुश हो जाता है, मेरे लिए 5 करोड़ की लिमिट, 5 करोड़ की लिमिट। अरे पेट्रोल पंप में 5% तक का कैश रिसीट होता है क्या? हार्डली फ्यू पीपल विल कैरी क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, गूगल पे, पेटीएम वगैरह करेंगे, बाकी के लोग तो कैश ही करते हैं ना। पेट्रोल पंप में तो मुश्किल है 5% का कैश रिसीट्स होना चाहिए और 5% का कैश पेमेंट होना चाहिए। मैम 5% ऑफ व्हाट? टोटल रिसीट्स एंड 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स। यस, ओनली दैट मच शुड बी इन कैश। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं जिनको पॉसिबल है, लाइक यू नो दे डील विद कॉर्पोरेट्स, होलसेलर्स है, आप रिटेल से डील करते हो ना, उनके लिए ये काम नहीं करेगा, इतना काम नहीं करेगा। यस, चलो आगे। Yes, so however understand the increased threshold limit will apply only if both the conditions are satisfied. In case both the conditions are not satisfied, threshold limit of 1 crore will apply। क्या बोला मैंने? तुम पहुंच गए, ऊपर पहुंचा दिया तुमको, निर्मला सीतारामन जी ने खुश कर दिया तुमको, बोल दिया 5 करोड़ पे, तुम गए 5 करोड़ पे, तुमने देखा 2 कंडीशंस है, बोथ सेटिस्फाई किए तो उधर ही रहोगे, बोथ सेटिस्फाई नहीं करोगे तो धक्कर से नीचे आके 1 करोड़ पे गिरोगे। लेकिन गिरते गिरते एक बैकअप है 2 करोड़ का, उधर चले जाना। 44 AD का
try and avoid tax audit if you can by opting for 44AD presumptive basis. Done. So guys, I've explained you 44AB which is tax audit. Yes, and ये important दूसरा चेंज. तो एक चेंज था 5 करोड़ का, दूसरा अमेंडमेंट जो यहाँ पे आया है वो है 31 अक्टूबर ITR का ड्यू डेट होगा और ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले करना पड़ेगा. फिर से मैंने बोला प्रैक्टिकली इस अमेंडमेंट का मेरे लिए कोई फायदा नहीं है. आई एम नॉट यूजिंग इट, बट जस्ट आपको बोलने के लिए ठीक है, अच्छी बात है. सो ये अमेंडमेंट अभी आया है. द स्पेसिफाइड डेट फॉर सबमिशन ऑफ टैक्स ऑडिट मींस द डेट 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द ITR. सो 139(1) सेक्शन भी अमेंड हुआ है, वो रिटर्न्स ऑफ इनकम में बता दूंगी. वहां पे अक्टूबर अभी डेट हो गई है, 31 अक्टूबर हैज बिकम द ड्यू डेट ऑफ ITR मींस इनकम टैक्स रिटर्न्स. Yes guys, so are you having fun? I am having super duper fun with all of you teaching you these amendments. इट्स अ कॉमन नोट सब जगह जहां पे हमने बोला प्रिस्क्राइब मोड, डिजिटल मोड होना चाहिए. क्या क्या है प्रिस्क्राइब मोड और डिजिटल मोड्स में? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग. हाँ, मेरा एक्चुअली मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मेरा अमेंडमेंट का लेक्चर ऐसे हो जाए कि ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है. ऐसा होता नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई शुड गिव यू द हिस्ट्री, द बैकग्राउंड एंड देन टीच यू द अमेंडमेंट्स. यस, बिकॉज May 21 students are absolutely banking and waiting for this amendment lecture. I hope I am doing justice to you. सो प्लीज अंडरस्टैंड द प्रिस्क्राइब मोड. सब जगह बोला गया कि आजकल डिजिटल मोड्स होने चाहिए, तो ये कॉमन नोट है सब जगह कि धीरज यस समरी बता देती हूँ. मैंने पहले ही समराइज किया बेटा, उसको देती हूँ बाबा ब्रेक. ये मे 21 स्टूडेंट्स इतना 1-1.5 घंटे बैठे और ब्रेक ले लिया. ऐसे चलेगा नहीं बेटा, अपने को कैसे जाएंगे हम आगे फिर. हाँ ना, इतनू सा पढ़ के ब्रेक लिया तो कैसे चलेगा. चलो चलो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे, ऑल दीज आर नोटिफाइड डिजिटल मोड्स है, ये चलते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है. यस, तो चलो PGBP को समाप्त करो मेरे साथ. हियर 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 हियर. हाँ, धीरज बोल रहा था मैम इसको समाप्त कर दे. बेटा ये देख, इधर है, समाप्त किया बच्चा मैंने इसको, ये देख. या सो बिजनेस, किसी को अगर फोटो निकालना है प्लीज इसका पिक्चर क्लिक कर दीजिए एंड देन यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. यस, नो आई एम नॉट गिविंग अ ब्रेक सो सून, बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट गिविंग अ ब्रेक सो सून. आप जस्ट 1-2 मिनट का ब्रेक लेके 4 कदम चल के वापस आ जाइए, इतना फ्रेश हो जाता है हमारे लिए. सो प्रोफेशन के लिए अबाउट 50 lakhs, बिजनेस के लिए 1 करोड़ का पहले था ही, 2 करोड़ समटाइम्स इट इज पॉसिबल फॉर यू. यस, 5 करोड़, सॉरी 5 करोड़ इज पॉसिबल इफ यू सेटिस्फाई 2 कंडीशन गाइज. यस, इफ यू सेटिस्फाई 2 conditions. And then presumptive basis. Done. क्लिक कर लिया. हाँ, अब मैं आपको ये समाप्त कर रही थी, किधर गया. हाँ, ये देखो PGBP में क्या क्या अमेंडमेंट्स मैंने आपको बोले, आपकी नोटबुक में ये लिस्ट कर दो, प्लीज कर दो बच्चा. 32 AD, क्योंकि आपको पढ़ना हमेशा, आपने जो नोट से पहली बार पढ़ा होता है ना, वहीं से पढ़ना हमेशा बेटर होता है, तो वहीं से पढ़ना हमेशा बेटर होता है. सो इट्स बेटर दैट यू स्टडी फ्रॉम देयर. ओके, हाँ, डिलीटेड सेक्शंस भी बताती हूँ, फोकस करो पहले. चलो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. यहाँ पे 32 AD आ गया. मैंने बोल दिया कि इसको काट डाला, ये नहीं है. एडिशनल डेप्रिसिएशन अभी सबके लिए 20 हो गया. कार के 2 ब्लॉक्स है, 30% एंड 45% गाइज, राइट. उसके बाद सेक्शन 35, ओके, साइंटिफिक रिसर्च सबके लिए 100 हो गया है. सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5. 35D का ऑडिट रिपोर्ट की क्या डेट है अभी? 35D के ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या बोल दी मैंने आपको? 30 सितंबर. उसके बाद मैंने आपको बोला मैम 35CCC एंड 35CCD और 32AD इसको काट डालने का, डिलीट हो चुके हैं. हाँ, ये एक्ट में से डिलीट हो गया है, ये 2 आपके सिलेबस से डिलीट हो गए, ठीक है. हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट इज 44AB टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट में यहाँ पे 5 करोड़ का क्राइटेरिया और 30 सितंबर, सो यहाँ पे 5 करोड़ प्लस 30 सितंबर का आपको याद रखना है. यस, सो गाइस प्लीज 32AD PGBP को ये समाप्त कर दिया मैंने. प्लीज
प्लीज आप नोट कर लीजिए। हाँ तो अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स में आपने सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस है, 32 AD कहीं पे भी अगर होगा तो वो नहीं मिलेगा। दूसरा चेंज, कहीं पे भी अगर हमने 4 स्टेट्स के लिए 35% से किया होगा तो अब रेट हो गया 20%। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च कहीं पे भी अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए जहाँ पे वेटेड डिडक्शन था 150% है, सो अभी वो नहीं मिलेगा, या 200% है, तो गाइज यू वोंट गेट दैट, यस यू विल नॉट गेट दैट। यस, सो विल यू गेट दैट? नो, अभी वेटेड डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, सीधा साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% ही डिडक्शन मिलेगा। 35 CCC 35 CCD अभी नहीं है, आपके सिलेबस से डिलीट हो गए। 32 AD का बेनिफिट अभी है ही नहीं। और टैक्स ऑडिट में 5 करोड़ और 30 सितंबर। यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, वी हैव वन मोर सेक्शन हियर, 43 CA। Yes, so I have one more section 43 CA. I am going to cover this in capital gains. इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन कैपिटल गेन्स में ये साथ में करवा दूंगी, ये रिलेटेड सेक्शंस ही है। Yes, so कैपिटल गेन्स का ये साथ में करा दूंगी, ये रिलेटेड सेक्शंस ही है। डन? आर वी ऑल डन विद दिस? Yes, तो PGBP is done. I'll move ahead to capital gains. कैपिटल गेन्स में ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, कैपिटल गेन्स में यू डोंट हैव मच अमेंडमेंट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हाँ आप फोकस करिए, एवरीबडी फोकस प्लीज, लेट्स अंडरस्टैंड। फास्ट ट्रैक। राघव, तुमको क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ ले सकते हैं, एसेट इज यूज फॉर लेस देन 180 डेज तो ले सकते हैं। राघव बेटा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आ रहा? तो स्पेसिफिक डाउट पूछ बच्चा, डोंट जस्ट वेग मत बोलना, ठीक है? चलो आगे। अमेंडमेंट्स, नाउ कैपिटल गेन्स की अमेंडमेंट। सो आई एम ऑन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स, वेरी few amendments, hardly any amendments are there, okay? So please focus and understand. If a capital asset is acquired before 1st April 2001, okay? So I'm sure जो मेरे क्लास के बच्चे उनको समझ में आ जाएगा। I think Raghav, you are not my class student. Yes, so please focus करिए। Now, additional, if a capital asset is acquired before 1st April 2001, guys, what is 1st April 2001? है ना, what is 1st April 2001? 1st April 2001 is the FMV, it is the base year, है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? बेस ईयर। तो हम क्या करते हैं, इस बेस ईयर में से हम सब कुछ इस बेस ईयर तक खींच के लेके आते हैं, राइट? सो अयो हाँ, yes, so 1st April 2001 is the base year, okay? Now 1st April 2001 ये आपका क्या होता है? बेस ईयर। राघव बेटा तू लेक्चर मत देख, डोंट वॉच द लेक्चर देन, नोबडी इज फोर्सिंग यू, तुम आए हो यहाँ पे देखने के लिए, मत देखो लेक्चर। जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए प्लीज, ओके? कम ऑन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इफ अ कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड गाइस बिफोर 1st April 2001, ये क्या होता है? 2001 के पहले हमारे पास इंडेक्स नहीं होते। 1 अप्रैल 2001 से पहले हमारे पास क्या होता है गाइस? इंडेक्स नहीं होते हैं। यस, सो व्हाट हैपेंस बिफोर दैट? अगर मैंने कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा तो आई रिलेट विद इट्स एफएमवी, हम उसको खींच के लेके आते हैं, हाँ उसका एफएमवी लेते हैं एज ऑन 1 अप्रैल, हम सब कुछ उसके बेस ईयर से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2001 से पहले मेरे पास इंडेक्स नहीं होता, दैट इज व्हाई इट्स अ स्पेशल केस। नाउ हियर देयर आर सर्टेन रूल्स कि यू नो मैंने 98 में खरीदा तो क्या होता है तभी, मैंने 1998 में खरीदा तो इन दैट केस यू नो आई टेक इंडेक्स एज 100 ओनली, I take actual cost or FMV whichever is higher. So you know what I do in this case, when an asset is purchased before 1st April 2001, yes, what is the cost? Now let us understand. Okay. Okay, thank you guys. Yes, now please understand. So if I buy it before, guys, see, if I buy before 1st April 2001 तो क्या होता है? when I buy before 1st April 2001 तो हमें क्या करना पड़ता है? whenever I buy it before 1st April 2001 then it is cost, actual cost, no? what is the cost of acquisition? We take we take it as actual cost or FMV,
actual cost or FMV as on 1st April 2001, whichever is higher. Yes, yes, yes. I also love you all, dear students. Yes, I'll bless you, Salumi. I'll try and use more English. Yes. Now let's understand. If I have bought an asset before 1st April 2001, guys, 1st April 2001 is like the base year. So uske pehle ke index is not available. So what we do is 1st April 2001 is taken as the base year. If I have bought an asset before 1st April 2001, what is the cost of acquisition, actual cost or FMV as on 1st April 2001, whichever is higher. तो हम खींच के लेके आते हैं, we get it to this base year basically. Now what is the amendment? Yes, so here is your star point. Believe me, note it down. 100% high chances, I can't say 100 because ICAI है, we can't predict it, so I feel 99% chances कि आपको इस concept पे exam में question आएगा. Yes, 99% chances कि आपको इस question पे yes, 99% chances that आपको इस question, इस concept पे exam में question आएगा. Yes, so very very important, मेरे हिसाब से extremely important amendment. Now अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है गाइज, यस, ना इफ दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेम पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट. एग्जाम के लिए स्टार 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 कर दो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यस, टैक्स ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट. दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज एक्चुअल कॉस्ट और FMV as on, मैम आप वही लिख रहे हो, you're writing the same thing, so what's the amendment? Wait, hold on. Here there is a important point. Here there's a important point, and what's that? Black color किधर गया? छुप गया. Here there's an important point which says that your FMV cannot exceed the SDV. What is SDV? Stamp duty valuation. What is SDV? Stamp duty valuation. So your FMV cannot exceed SDV. Do you understand that? Yes. तो मेरा जो FMV है, this FMV cannot exceed SDV, cannot exceed SDV as on 1st April 2001. Guys, and for this मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस है, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जो मैं कवर कर लूंगी. पहले किसी को ये नोट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि मुझे वहां पे प्रॉब्लम दिया है वो मुझे सॉल्व करना है. सो कैन यू क्विकली नोट इट डाउन? सुपर फास्ट राइटिंग स्पीड. नोट इट डाउन डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन. Yes, FMV cannot exceed SDV as on 1st April 2001. What is SDV, ma'am? Stamp duty valuation. This is the valuation done by local authority so that we are able to calculate the stamp duty. Yes. SDV of 1st April 2001. मनीष, मैंने बोला SDV as on 1st April 2001 लिखा है उधर. मैं स्टार्ट करने वाली हूँ CA फाइनल. आई एम प्लानिंग टू, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट फाइनल. ओके, जेसी, जेबा, सलोमी, ग्रेट, यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, दैट्स नाइस. Yeah, SPC is there for 11th also. Hyderabad, lovely. So we have students all across India watching it. Great. चलो, लिख के हो गया. I am going to erase this because I need this space to write down. Delhi, Gujarat, wow. Kerala, great. Tawfiq Alam, why am I ignoring your text? What is your text, beta? वडोदरा, पंजाब. नो, आई थिंक यू आस्किंग मी अबाउट CA फाउंडेशन के फ्री लेक्चर्स कब मिलेंगे, वो SPC का ऑफिस बताएगा. आई डोंट लुक इनटू एडमिन पार्ट, सो आई रियली कांट आंसर. नो. Guwahati, Assam, lovely. So if you're having fun quickly, that's nice. Come on, come on. Chennai, Bangalore, Chandigarh, wow.
Great. New students always welcome. सूरत, वाव. अहमदाबाद, आकाश. नेपाल से भी है. छत्तीसगढ़, लवली. बिहार, थैंक यू. मानसी फ्रॉम मध्य प्रदेश, पटना. अहमदाबाद से स्मार्ट एजुकेशन. चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. कम ऑन. एग्जाम्पल, लेट्स नोट डाउन हियर. एग्जाम्पल में एक पॉइंट ऐड कर देना. यस, कर्नाटक, राजकोट, लवली. आगरा से भी है दिव्या. वाओ. So we have students all across India. Love you all, guys. Come on. Land purchased 10 lakhs. Now let's say this land is purchased on or in, I'll say in. अयो तेरे को क्या हो गया रे बीच में? Land is purchased in June 1998. Yes. So please note it down, guys. जिनके पास नोटबुक एग्जाम्पल्स ये प्रिंट आउट नहीं है, आप प्लीज आपकी नोटबुक में लिख लीजिए. यस. Yeah, Gautam, I read your message, beta. Rashmi from Delhi, great. But I'm an old student, great, but that's nice. बीकानेर से प्रेम है. सेजल मुंबई से है. वेदिला महाराष्ट्र, बड़ौदा. बोकारो, अच्छा. Rahul is from there. ग्रेट. झारखंड से भी है. ओ, इट्स फ्रॉम झारखंड, राहुल. ओके ओके. अपने मुंबई. यस. मनीष श्रीवास्तव, तू मार्च से है तो इधर क्यों आया? हाँ, उधर भी सीए का एग्जाम है क्या तेरा? अमृतसर से भरत. वीरू फ्रॉम बिहार. ईशा बड़ौदा से. ललिता फ्रॉम मथुरा. शिवम हैदराबाद से. ग्रेट. दीपक. ए दीपक हरियाणा. दीपक मित्तल, यो माई स्टूडेंट. लाइव स्ट्रीमिंग का है क्या तू? लखनऊ से वैश्लमिनी. ओके. देवेंद्र, देन मधु. आसाम से यश. अपुन चांद से. प्रथमेश, तू चांद पे ही अच्छा है फिर. राजस्थान से अखिलेश. ओके. बोकारो इज झारखंड एजुकेशन कैपिटल. दैट्स नाइस. शिवम. कटनी, केरला. ओके. विजाज. यस. चलो चलो, पंजाब, कोल्हापुर, गाइस. हाँ, अब स्टार्ट करते, थोड़ा सा फोकस करते. चलो. लैंड परचेज ना, थोड़ी देर में चैट नहीं देखूंगी प्लीज. लैंड इज परचेज 10 lakhs इन जून 1998. ओके. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. आप क्या लेंगे? ओके. नाउ एफएमवी इज फर्स्ट ऑन 1st April 2001 इज 12 lakhs. बट गाइज एफएमवी कैन नॉट एक्सीड एसडीवी. So I'll have to restrict it to the SDV. Yes. So here my cost of acquisition will be actual cost 10 lakhs. So of course I just wrote down it's purchased in June 1998, guys. तो इस टाइप का क्वेश्चन प्लीज ये एग्जाम्पल आप नोट कर दीजिए, इसको स्टार मार्क दीजिए. आई फील देयर आर हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग दिस एज एन एग्जाम क्वेश्चन. यस. So please focus करिए. So is this before 1st April 2001? Yes, so it's before 1st April, guys, 2001. Yes. Now what is happening here? Before 1st April 2001, I have an option of actual cost or FMV. So whatever is 1st April 2001 is like my base year. That is why cost of improvement before that I don't consider. FMV is considered. Index of this year is considered. So FMV also of this year should be considered. And in that FMV, that cost of improvement is already added. So that is why any cost of improvement incurred before 1st April 2001 is always ignored. Yes. Now let us understand what is happening. So the cost of acquisition will be actual cost. This is your actual cost, guys. Yes, that's your actual cost, which is 10 lakhs, or what? Or it is going to be or FMV, but FMV can't be 12 lakhs. I will have to restrict it to 11 lakhs. So here ये amendment है और यहाँ पे हम लेंगे 11 lakhs, whichever is higher, guys. Yes, so my cost of acquisition is going to be over here. It's going to be 11 lakhs. Yes, so my cost of acquisition is going to be 11 lakhs. Why? Ma'am, आपने FMV क्यों नहीं लिखा? Because there's a rule. FMV cannot exceed, can't be more than SDV. It is within SDV. I have no limit. FMV तो limit के अंदर रहे. You can't cross SDV. So SDV is the limit. SDV is the limit. Yes. So please आप note कर लीजिए ये सब. नो, दिस इज 105%. यहाँ नहीं आएगा गौतम, ये सेलिंग का नहीं चल रहा है.
ये परचेजेस के लिए चल रहा है, दिस इज परचेजेस, यस, दिस इज नॉट सेलिंग, दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यस. सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आप इंडेक्सेशन करेंगे इसका, हाउ विल आई डू द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दिस? द इंडेक्स कॉस्ट विल बी, द कॉस्ट इज 11 lakhs divided by 100, right? Because I can't have cost of 98, 99 का मेरे पास इंडेक्स नहीं है. So do I have index of 98, 99? No. So I don't have an index of 98, 99. So obviously I'll take the index of the base year, right? So index base year का लिया ना, तो FMV भी base year के हिसाब से निकालो. लेकिन immovable property के लिए FMV cannot exceed SDV. It cannot exceed SDV. Yes, into index of the year in which asset is transferred. Index of the year in which index of the year in which asset is ट्रांसफर्ड, यस. सो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएगा. अच्छा मैम, अगर इसकी जगह पे एसडीवी 13 लाख है, ओके, नाउ एफएमवी, दिस इज एग्जाम्पल से 1, एग्जाम्पल ए, नाउ एग्जाम्पल बी. सो माई कॉस्ट इज 10 lakhs, माई एफएमवी इज 12 lakhs and my SDV, आपको जो जो लिखना है guys, it's an amendment lecture, you have done tax earlier, you may have appeared for the exam or for some reason you must have opted out, but you have done tax earlier, so this speed is good enough, right? I don't think the video is lagging because I am watching it simultaneously on YouTube. Screen recorder is on. What screen recorder is on? हाँ, सुनो, SDV कितना है? ओके, SDV 13 लाख है. तो इज FMV विद इन? यस, FMV कैन नॉट एक्सीड SDV गाइज. दिस इज ऑल ऑन 1 अप्रैल 2001 का FMV. SDV भी 1 अप्रैल 2001 का. मैम क्यों? बिकॉज ये असेट खरीदा गया है जून 1998 में, माने बिफोर 1 अप्रैल 2001. Yes, now let us understand here what will be the cost of acquisition. Cost of acquisition for here guys, it will be actual cost 10 lakhs or FMV 12 lakhs, whichever is higher. So it will be 12 lakhs. That means, can I conclude, can I say between FMV and SDV choose whichever is lower? Yes. So between FMV or SDV choose whichever is lower. बिल्कुल. Done. Example A and B. FMV cannot exceed SDV. This is the amendment for immovable property. मेरे हिसाब से ये important amendment है. Yes, तो मेरे हिसाब से ये important attempt है एग्जाम के व्यू पॉइंट से. Done. चलो, capital gains IOS also I want to do. Are you all done? Next amendment. I'll come to the next amendment. Speed is okay, great. लिख के लो, मैं क्यों रुकी हूँ? क्योंकि एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. मुझे सिर्फ अमेंडमेंट सिखा के लेक्चर खत्म नहीं करना है. आई एम कंसर्न कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस. दिव्या बेटा, अच्छा धीरज पटेल करना रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम, लेक्चर यूट्यूब पे ही है बच्चा. गौतम, यूर ऑन रॉन्ग ट्रैक, वेट, रॉन्ग ट्रैक, वेट. सेकंड पॉइंट एक बार समझा दो, ठीक है? समझा देती हूँ. सुनो, ओके, फिर से समझाती हूँ. दोनों एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो आप समझ लेना, ठीक है? हाँ, सुनो. हाँ, सेकंड पॉइंट फिर से समझाती हूँ. Cost of acquisition, actual cost is 10 lakhs. Okay. Is the asset acquired before 1st April 2001? Yes. Then what will be the cost of acquisition? का formula is
एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी दोनों में से विचएवर इज हायर, एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी दोनों में से विचएवर इज हायर, यस, सो दोनों में से विचएवर इज हायर वो लेते। बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हियर, इट सेज कि एफएमवी जो है ना, याद रखना अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, योर एफएमवी कैन नॉट एक्सीड एसडीवी। ओके, व्हाट इज माय एसडीवी? अयो 13 लाख। इज माई एफएमवी विद इन दैट? यस, तो चलेगा, हाँ चलेगा। सो एफएमवी से काम चलाना पड़ेगा। माने बिटवीन एफएमवी एंड एसडीवी वी आर अलाउड टू चूज विच एवर इज लोअर। बिटवीन एफएमवी एंड एसडीवी यू आर अलाउड टू चूज, दो तरीकों से समझाया, between FMV and SDV choose whichever is lower, or remember theoretically that line FMV cannot exceed SDV। तो ये SDV है तो FMV उसके अंदर होना चाहिए। अभी देखो SDV कितना है 13 लाख और FMV कितना है 12 लाख। इस 12 लाख विद इन 13 लाख का लिमिट, यस, सो आई हैव नो प्रॉब्लम, कंसिडर FMV। ऊपर क्या हुआ था, 12 लाख वॉज अबाउ 11 लैक्स, वहां नहीं चलेगा, इसलिए मुझे वहां पे 11 लाख लेना पड़ा। इधर मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 12 लाख इज वेल विद इन द लिमिट ऑफ 13 लाख। माने इनडायरेक्टली दो तरीके से मैंने समझाया, आपको जो समझेगा अच्छा लगे वो याद रखो। एफएमवी कैन नॉट एक्सीड एसडीवी, और रिमेंबर बिटवीन एफएमवी और एसडीवी चूज विचएवर इज लोअर। बिटवीन एफएमवी और एसडीवी चूज विचएवर इज लोअर। ओके, डन? जिनको डाउट था, नाउ इज इट क्लियर? बिकॉज एग्जाम में एक्सपेक्टेड है गाइस, ये दिस इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम। यस, सो सागर इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ, ग्रेट, सुपर, डन। 50B, 50B इज द अमेंडमेंट विच टॉक्स अबाउट अ रिपोर्ट। आ गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आईओ पहले ही बता दिया, जहां जहां सीए को रिपोर्ट देना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट का ड्यू डेट हो गया है 30 सितंबर, विच इज 1 मंथ बिफोर द आईटीआर का डेट। आईटीआर का डेट 31 अक्टूबर, एक महीना पहले 30 सितंबर ऑडिट का डेट। यस, उसके एक महीना पहले 30 सितंबर ऑडिट का डेट। ओके, मैं कभी कभी आपकी क्वेरीज देखती हूँ, या तो वो आगे कवर होंगी इसलिए मैं उसको अभी इग्नोर करती हूँ, या मुझे उसके जवाब नहीं पता। जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे कुछ पूछोगे तो आई एम नॉट कंसर्न, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू विद दैट। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू सबमिट रिपोर्ट सर्टिफाइंग दैट द नेट वर्थ। अच्छा, आपको याद आ रहा है स्लम सेल में क्या होता है? स्लम सेल में याद आ रहा है क्या? एंटायर अंडरटेकिंग इज सोल्ड गाइज। व्हाट हैपेंस इन स्लम सेल? Yes, entire undertaking is sold. Entire undertaking या entire unit is only sold. Yes, पूरा का पूरा यूनिट आप सेल करते हैं स्लम सेल में। स्लम सेल में आपको सेल कंसिडरेशन पता होता है, स्लम सेल में आपको क्या पता नहीं होता? इन स्लम सेल you do not know what? In slum sale we do not know the cost, so we treat the cost as the net worth. Now whether you have calculated the cost correctly or not, you have to submit an audit report. Yes, so a CA has to submit a report that net worth has been correctly calculated. Ma'am, why net worth? Your net worth is the cost of acquisition, so whether you have calculated this correctly or no, इसके लिए CA को audit report देना पड़ता है। Yes, ITR date, no, it's 31st November guys. Wait, ITR का date 31st November only for transfer pricing. I will come to the returns chapter and tell you. So here the due date is 30th September. कोई भी रिपोर्ट आपको जब भी CA को देना पड़ेगा वो